This is a question that we get asked invariably everywhere. Even we went on Shark Tank, the same question. एक चीज बताओ, आर पीपल रीडिंग बुक्स टुडे? मतलब इन दिस होल डिजिटल एज लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, पर लोग बुक्स पढ़ रहे हैं आपके हिसाब से? ये जो discussion है about whether or not people are reading books, this discussion really started when internet came along. Since then, the book industry has grown about 6 times. People often ask us, digital books का time आ रहा है, कौन physical books पढ़? अगर आप data देखेंगे, about 6% industry sales globally is only digital sales. 94% is still hard copy. Any room of 10 people, I go and ask कि last book आपने क्या पढ़ी थी? Probably 8 or 9 of them will raise hands for hard copy. You are creating a very interesting D2C publishing business, and I don't know, is it an edtech you are building, book business you are building, D2C you are building? तो आप क्या build कर रहे हैं? It's a two-sided platform. One side we talk to authors, second side we talk to readers, we talk to learners. Both the sides we want to hold a relation, and that is what led us to build a D2C. 90% of our sales come via our platform and Amazon and such marketplaces where we are the ones largely shipping to the end reader, and that is a relation I'm very protective about. जो अभी करंट बुक्स का इकोसिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा ब्रोकन स्पेस है कि बुक अलग लिखी गई है, उसको उठा के आपने डिजिटल चढ़ा दिया है और किसी ने अलग ने पकड़ के रीड कर दिया है। एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस की कमी है। तो वाज दैट द गैप यू वर लुकिंग टू सॉल्व? When we started, we did not realize कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। Thinking is very clear, sir, कि end customer के लाइफ में बुक का रोल, एक बुक का रोल बहुत लिमिटेड है। We want to be part of that journey. We don't want to be part of a single step. What made you launch an app? मतलब जब बिकी ऑफलाइन रहा है तो आपको डिजिटल एक्सपीरियंस पे इतना इन्वेस्ट क्यों करना पड़ा? सर डिजिटल एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि टच पॉइंट्स बुक में नहीं होते। आपको मैंने बुक शिप कर दी, उसके बाद आपने क्या किया मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जितने भी लोग हार्ड कॉपी खरीदते हैं हमारे वेबसाइट, उसी सेम बुक का हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी फ्री में देते हैं, सो दैट वी नो व्हाट दे आर डूइंग। मार्केटिंग में क्या क्या है? मार्केटिंग में आई थिंक अब हमने ब्रिलियंट काम किया है। वी हैव मार्टेक के ऊपर एक बुक है, पावर ऑफ इमोशनल मैसेजिंग, ब्रांडोलॉजी, डेटा स्टोरी टेलिंग बुक, B2B मार्केटिंग, माइंडफुल मार्केटिंग, हाउ टू वर्क विद गवर्नमेंट, B2G बिजनेसेस के लिए। अच्छा, ये ज़ीब्रा वर्ड कैसे आ गया? ये मतलब बाइट पे टाइप्स है, इसकी क्या कहानी? आपके जो रीडर्स एंड लर्नर्स हैं जो हैं वो कहाँ से आपको मिलते हैं? हाउ डू दे डिस्कवर द बुक्स? इफ समबडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट इज वांटिंग टू राइट अ बुक, तो व्हाट इज द प्रोसेस ही विल गो थ्रू? अमेज़न से कितनी सेल होगी? सर अमेज़न से हम लगभग पूरा बिजनेस का अभी 40% करते हैं। इज अमेज़न अ फ्रेंड और अ फो? Welcome to the Dil Se Omni podcast, Anurag. It is great to shoot an episode with you in this wonderful city of Surat. Thank you so much for having me. It's a pleasure. I've watched Ashish sir's episode on your platform, on your podcast, and it's a privilege to be here and talking to you. Yeah, and it's great to have a podcaster talking to a podcaster. And interestingly, you know, this is my 15th episode which I'm shooting. That's one milestone. And I think so you have also completed 14 episodes. So technically it's your also 15th episode, but Yes. not as a Not as a host. but as a guest. So great, yaar. So Anurag, tell me one thing, you know, let's get deep into the conversation. You're creating a very interesting D2C publishing business. And I don't know, is it an edtech you're building? Is it a book business you're building? Is it a D2C you are building? तो आप क्या build कर रहे हैं इससे? मतलब that's a very simple question I have for you. Thank you so much. First things first, hello everyone. Wonderful talking to you. Thank you for taking out time. Sir, आपका जो question है, the question that you are asking, honestly, there are multiple interpretations to it. My interpretation is it's a two-sided platform. One side we talk to authors, second side we talk to readers, we talk to learners. Both the sides we want to hold a relation. So how typically publishers have have one of these relations. Basically, they'll talk to authors, sometimes directly, sometimes via literature agents, and on the other side, they will have retailers. They will have the Amazons of the world, the Flipkarts, and all these platforms of the world who will be talking and holding the relation with the end customer. So the publisher is really in that mix where they are only holding one side of the relationship. That is one thing that we pretty much don't agree with, holding both the relations, one with the supply side, which is the authors, the brands, the publishing, all the ones that are contributing content, and second side is the reader side, learner side. We are very particular about holding that relation, and that is what led us to build a D2C. That is what made us do D2C. That is not, D2C is a means to that relation. I am personally very passionate about that learner story. See, a book is a milestone. A book is never the end goal. Book 1 will be followed by book 2, will be followed by course 3, will be followed by classroom 4, and so on.
So it's very important for me to hold that relation. So that is why I will say, from a business model perspective, it is a platform. From a marketing perspective, we operate as a D2C platform. Majority of our sales, upwards of 90% of our sales, come via our platform and Amazon and such marketplaces, where we are the ones largely shipping to the end reader. And that is a relation I'm very protective about. तो हम इसमें डबल डाउन करेंगे अनुराग, बट एक चीज बताओ, आर पीपल रीडिंग बुक्स टुडे? मतलब इन दिस होल डिजिटल एज, मतलब इतना, मतलब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, पर लोग बुक्स पढ़ रहे हैं आपके हिसाब से? सर देखो, मेरा तो इंटरेस्ट बायस्ड है. मैं बुक्स बेचने की दुकान चला रहा हूँ. हम्म, दुकान, आई एम यूजिंग द वर्ड दुकान कॉन्शियसली टू मेक हम्म, इट मोर सिंपलर. हम्म, But sir, अगर मैं थोड़ा, and this is a question that we get asked invariably everywhere. We go to colleges, this question comes. We go to investors, this question comes. Even we went on Shark Tank, the same question. तो मेरा जो, I have worked as an equity research analyst in the past, in my previous avatar. तो I went to data. Here are 2-3 things that I will answer to this question. पहला, ये जो discussion है about whether or not people are reading books, this discussion really started when internet came along. हाँ जी. That was the first time data became free or content became free, because everything was on blogs. That was the first time. उस समय people were asking, अब तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो कौन पैसे दे के बुक्स खरीदेगा? And that discussion had a lot of merit. But since then, the book industry has grown about 6 times, 5.5, 6 times. So that is so अब AI and chat GPT and all are variations of blog. They will help you better find and get to an answer, much more convenient and much more directed. But at the end of it, जो information आपको blogs पे थी, वही information आपको यहाँ पे भी मिल रही है. So that is despite, so I don't personally feel कि books is going to go, I still feel कि there's a lot of merit in the same. That's point 1. Point 2 is very simple. आज भी आपको कोई चीज़ स्क्रैच से सीखना है. Let me ask you, you want to learn photography. What will you do tomorrow morning? So if I want to learn photography, I will first go to maybe a chat GPT and say, I want to learn photography, And? give me a steps playbook. I will figure out who are the top people who are into photography. I will start following them, Done there. their content on social media, on YouTube में उनका कोई course लूंगा, and maybe I might go into buying a book or something. Correct. But I will go into a community of photographers and then I'll go into their content. Sure. And at some मतलब एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जब इतना सारा कंटेंट हो जाता है ना, तो सबको चाहिए कि भाई मुझे सिंपल तरीके से ना हिंदी में समझा दो. पॉकेट्स में आपको कोई चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर यू विल गो टू दीज प्लेटफॉर्म्स. बट कोई चीज स्क्रैच से सीखनी है, योर आंसर स्टिल आर बुक्स, a live course or a recorded course, or attending someone's tutelage and being by them, which is very difficult by the way and very expensive to do as well. यही 3-4 चीज़ें, आज भी कुछ भी नहीं है. And that is number 2 why I feel that books have a very long way to go. If anything, with conscious screen times, it is going to come back. And number 3, जो books के regarding मेरा जो काफ़ी सारे myths भी है book के around. पहला क्वेश्चन है, पीपल ऑफन आस्क अस, डिजिटल बुक्स का टाइम आ रहा है, कौन फिजिकल बुक्स पढ़ता है? 90% बुक्स दैट वी सेल इज डिजिटल. अगर आप डेटा देखें, इज हार्ड कॉपीज. अच्छा, हार्ड कॉपीज. अगर आप डेटा देखेंगे, अबाउट 6% इंडस्ट्री सेल्स ग्लोबली इज ओनली डिजिटल सेल्स. 94% इज स्टिल हार्ड कॉपी. एनी रूम ऑफ 10 people आई गो एंड आस्क कि लास्ट बुक आपने क्या पढ़ी थी, probably 8 or 9 of them will raise hands for hard copy. So truth of time is कि वो hard copy ही लोग पढ़ते हैं आज भी, hard copy ही prefer करते हैं, despite lot of these myths and lot of these shorter forms that we see around. So these are reasons why we believe that जो impact हम books के through create कर पाते हैं, वो impact बाकी चीज़ों के through भी create होता है, but at a later stage. तो बुक्स का एक काम है more on the entry stage and more structured approach. बाकी जो चीज़ है उनका ग्रैनुलर काम है, helping you at particular points, helping you at particular places with their pockets of information. आप बताओ, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हो? आपने लास्ट क्या बुक पढ़ा था? क्या आपकी क्या रीडिंग आपका क्या रिलेशन है रीडिंग के साथ? तो मैं ना एक बहुत ही आलसी रीडर हूँ. तो मतलब मैं अपने आप को बुक कलेक्टर बोलता हूँ, पर मैं बुक्स खरीदते रहता हूँ, पर मैं बुक्स पढ़ता नहीं हूँ. अब क्या हुआ, जब से मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की है, तो इसी आई वैल्यू की मुझसे रीडिंग होगी नहीं, तो मैं ना लोगों से रिकमेंडेशन मांगता हूँ. मैं वैलिडेशन देखता हूँ कि क्या 10 लोग रिकमेंड कर रहे हैं बुक.
तो आजकल क्या हो गया, क्योंकि मैं पॉडकास्ट में ना हर जगह एंड से पूछता हूँ कि व्हाट इज वन बुक विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। तो अभी 14 एपिसोड हो चुके हैं, तो मेरे पास 12-13 की लिस्ट निकल गई है और उसमें से मैंने 4-5 पढ़ भी डाली हैं। तो फॉर मी वैलिडेशन ऑफ दैट इट इज़ अ ग्रेट यूज ऑफ माई टाइम इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उसके चलते माई रीडिंग हैज़ इनफैक्ट इंक्रीज्ड अ लॉट इन द लास्ट 1 ईयर। Wow, मतलब आई एम रीडिंग ऑलमोस्ट 1 बुक पर मंथ। wow, that's great speed. हाँ, एंड आई एम अ मोस्टली नॉन फिक्शन बिजनेस हाँ, same. वेस्ट टाइप का हूँ। मुझसे कहानियाँ नहीं पढ़ी जाती, कहानी के लिए मूवी देख Picture लेंगे देख अपन, लो. मतलब वो है। बट आई इको कि मैं कोशिश करता हूँ डिजिटल बुक्स पढ़ने की, तो मेरे पास किंडल अनलिमिटेड भी है, मैंने 40-50 बुक्स उसमें डाल भी हैं। बट फिर मैं फिजिकल कॉपी भी ऑर्डर कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ऑडिबल भी ले लेता हूँ, फिर क्योंकि मतलब कि सब कुछ होना पढ़ते चाहिए। कैसे हो लास्ट में? हाँ आप पढ़ते कैसे हैं लास्ट में? हाँ, पढ़ते कैसे हो कि कई बुक्स तो मैं एकदम खटखट करके बट पढ़ हार्ड जाता। कॉपी और डिजिटल मेरी बैलेंस? मिक्स है, मतलब दोनों ही है, मुझे चाहिए दोनों। तो इट डिपेंड्स कि मेरे को ना चुल मचती है कि बस यार मैं बुक अभी मिल गई, मेरे को चाहिए, अब मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरे को डिजिटली पढ़नी पड़ेगी। हाँ, वो तो आज ही बट फिर चाहिए. फिजिकल बुला के करके। 3 दिन एंड दिस इज लगेगा. वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई लर्न, समबडी सेड कि द ब्यूटी अबाउट फिजिकल बुक्स इज व्हेन यू स्क्रिबल अराउंड इट, यू मेक द Absolutely. बुक योर्स। Yours. तो जब आप उसमें नोट्स बनाते हो, ऊपर लिखते हो, सर्कल करते हो, अंडरलाइन करते हो, वो आपकी अपनी बन जाती है। तो एंड इट इज इंटरेस्टिंग, अच्छा आई नोटेड, यू नो, व्हेन आई वाज आई केम अक्रॉस दिस मार्कटेक बुक बाय आशीष बजाज। तो वो मुझे दिल्ली में मिले, वो कोई सेमिनार कर रहे थे, ही इज अ गुड फ्रेंड, उन्होंने कहा सौरभ आजा। अब वो बुक के बारे में बात किए जा रहे हैं, मैंने कहा यार मुझे बुक चाहिए, मैंने बुक ली, और मार्कटेक मेरा भी टॉपिक है, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो अब बुक आने में थोड़ा टाइम लगा, मैंने डिजिटल कॉपी ली, उठा के पढ़ी, उसमें से कुछ फ्रेमवर्क्स कॉपी पेस्ट मारे, अपने लेक्चर्स में डाले और पढ़ा दिया। और आई हैव रेड इट एंड टू एंड, वन ऑफ द, Wow. मतलब डेस्कटॉप पे जाके मैंने एक एक चीज मार्क एक एक चीज किया और फोटो भी खींची। फिर मैंने कहा यार इतनी अच्छी है तो आशीष को नेक्स्ट टाइम बोलता हूँ पॉडकास्ट पे लेके आए। तो फिर वो पॉडकास्ट पे आए, फिर मैंने कहा यार मुझे भी किसी दिन ना बुक लिखनी है, तो मुझे अनुराग से कनेक्ट कराओ। तो हियर आई एम विथ यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। एंड आई मस्ट से, यू नो, what I don't like about digital books is they are still black and white. Yeah. What they have done is they have taken a black and white book into a black and white thing. तो उसमें ना फ्रेमवर्क्स होते हैं ना ये होते हैं। तो जैसे बच्चों की इलिस्ट्रेटिव बुक्स होती है ना, हाँ. तो दैट इज द थिंग विच आई लव्ड कि देयर आर इन्फोग्राफिक्स, इट हैज बीन मेड इंटरेस्टिंग। अभी आप कॉमिक स्टाइल तक नहीं पहुंचे हैं, बट हाँ. आपने उसको इन्फोग्राफिक तो बना ही कॉमिक दिया। स्टाइल तक पहुंचना भी नहीं, आई थिंक एकदम कॉमिक स्टाइल तक पहुंच जाएंगे तो शायद आप पिक भी नहीं करते वो बुक को. बट बुक्स का चस्का कैसे लगा? सर बुक्स का चस्का ऑनेस्टली बताऊं, मैंने 12th तक एक भी बुक नहीं पढ़ी थी आउटसाइड एकेडमिक्स. इनफैक्ट इफ एनीथिंग आई वाज अ बिग टाइम, क्या बुक कौन पढ़ता है. फर्स्ट ईयर में मैं एक अकेडमी ज्वाइन किया, फिनाकल इन्वेस्टमेंट अकेडमी, सूरत में ही है. नाउ दे आर इन बॉम्बे एंड मल्टीपल अदर प्लेसेस. उधर इंदर सर थे. ही टोल्ड मी कि भाई तू पढ़ लेगा, तू ज्ञान सब. आई वाज अ स्कूल टॉपर थ्रू आउट. सब कर लेगा, बट वेयर विल यू लर्न थिंग्स दैट यू वांट टू लर्न. सो ही गेव मी अ बुक. इट वाज अ वेरी थिन बुक कॉल्ड Alan, questions are the answers are the questions by Alan Please. Very thin book, like 80-90 pages. वो मुझे पढ़ने में शायद 20 दिन महीना भर लगा. बट दैट वाज द फर्स्ट बुक. फिर उन्होंने मुझे एक और बुक दी, 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग. वो फाइनेंस का क्लास था. सो दैट वाज बाय पैट डॉर्सी, मॉर्निंग स्टार के फाउंडर. दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड बुक. वो बुक बोले तुम एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाओगे, एक हफ्ते तक क्लास एक भी अटेंड नहीं करोगे, ओनली थिंग दैट विल डू इज eat, sleep and read this book. Don't talk to me till the time you have completed this book in a week, not more than that. मैंने 10 दिन 9 दिन लिए, कंप्लीट पूरी कर ली. एंड वो पहली बुक खत्म करने के बाद पता है अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है. इट इज़ लाइक लूजिंग दैट फर्स्ट किलो ऑफ वेट व्हेन यू गो टू द जिम. इट इज़ दैट आहा मोमेंट कि मुझसे हो सकता है. तो वो पहली सीरियस बुक कंप्लीट करने के बाद दैट चेंज्ड अ लॉट फॉर मी. आई थिंक उसके बाद फिर सेकेंड बुक मैंने वापस 15 दिन 20 दिन लिए, बड़ी बुक थी, पढ़ी. And when we started Zebra Learn, I all of a sudden had a lot of marketing responsibilities. मैं marketing का तो कोई background ही नहीं था, finance का background था. So what I did was I took couple of months and just read books. आज भी जब डर लगता है कोई भी चीज़ में, I have a tendency to go towards book. कि मतलब and that is what Zebra Learn is. Zebra Learn is a reflection of that. कि आपको कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, छोटे मोटे प्रॉब्लम का यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन, बट कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आई हैड टू बिल्ड अ टीम. आई रेड 3-4 बुक्स अबाउट इट. आई रेड अ बुक ऑन हाउ टू टेक एन इंटरव्यू. आई एक्चुअली डिड रीड अ बुक ऑन हाउ टू टेक एन इंटरव्यू. आई गॉट टू नो, इसको इंटरव्यू हम लोग कॉमनली बोल देते हैं, इट्स कॉल्ड टॉप ग्रेडिंग.
कि टॉप ग्रेडिंग के क्या तरीके होते हैं, उसके ऊपर देयर आर सो मेनी पीडीएफ्स. आई हैव अ रेड फाइल एट होम विच इज ऑल माय नोट्स आई रिमेंबर. और जब बुक्स पढ़ रहे था ना, तो एक चीज आई यूज्ड टू मेक श्योर, रिट्रीवेबिलिटी. कहने का मतलब कि जब भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, देखो मैं मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डालता था ना कि याद नहीं रह रहा, जब तक हाँ बुक का 50वां पेज आया दूसरे पेज की बातें भूल गई. बिल्कुल. which is and that pressure used to put me off कि again I used to go back to page 2 and read क्या था which is not a great thing. मतलब उसमें Inder sir helped me with this कि बुक को यूजेबल बनाओ, याद नहीं रहेगा कभी भी. तो बुक में आई रिमेंबर जो आपने बोला मार्क करो, आई यूज टू मार्क एवरीथिंग. जो इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल करता था, जो इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो मच अंडरलाइन करता था. और इस पेज पे क्या 3 टॉपिक की बात हो रही है वो मैं पेंसिल से साइड में लिख लेता था. तो जब आप घुमा रहे हो ना पेजेस, इस पेज पे इसकी बात हुई है, सिर्फ 3 एक वर्ड, नॉट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसके बाद तो सर्कल हाईलाइट ये सब में दिख जाएगा. सिर्फ एक पेंसिल को हाईलाइटर ये वो नहीं. बट माय ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक द बुक रिट्रीवेबल. आप बार बार जीब्रा लर्न कह रहे हैं, ठीक है, ये जीब्रा वर्ड कैसे आ गया? ये मतलब वाइट पे स्ट्राइप्स है, इसकी क्या कहानी है? तो जीब्रा की कहानी ये है सर, देखो जब हमने स्टार्ट किया था बुक्स को तो हमने फाइनेंस की बुक्स की थी. सो हमको बहुत सजेशंस मिला, फिन यूज़ कर लो, ये कर लो. बट फिर ये पता था कि पता नहीं आगे क्या करेंगे, सिर्फ इनकी फाइनेंस बुक्स तो कर नहीं रहे होंगे. सो लेट्स नॉट स्टिक टू अ थिंग्स. बायर्स नेम नहीं हाँ, होता. बायस नेम नहीं लेते. तो हम फिर मैंने कहीं पढ़ा ए फॉर एप्पल, बी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह का नाम होना चाहिए. हम्म. तो जेड फॉर जीब्रा मिला. जीब्रा इज समथिंग दैट इज अ लिटिल एस्पिरेशनल फॉर एवरीवन. इट्स गुड, ब्लैक एंड व्हाइट, इंडिया में एस्पिरेशनल एनिमल. सो दैट्स हाउ वी लैंडेड एट ये फॉर अमेज़न है, ज़ेड फॉर ज़ीब्रा है. जेड फॉर जीब्रा है. एंड जेड नाम की कंपनी अच्छा कर भी रही है. इनफैक्ट शार्क टैंक की ग्रुप है, उसमें एक दिन बात हो रही थी, जीरोधा, जोमेटो, ज़ेप्टो. जेप्टो, जेड नाम की कंपनी सारी अच्छी कर रही है. So just not be नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम and एंड इट स्टिक्स टू योर रिकॉलेबिलिटी अच्छी है. रिकॉलेबिलिटी अच्छी है एंड वी कैन और डोमेन मिल गया होगा. नहीं को लर्न डोमेन के कारण मिल गया. अच्छा. zebra.com $11 बिलियन की कंपनी है लॉजिस्टिक्स की यूएस में. तो अच्छा. zebralearn.com का थिंकिंग ये था कि लर्न एजुकेशन. आई थिंक दैट मच कमिटमेंट जैसे फिजिक्स वाला को वल्लाह करना पड़ गया था. हाँ, तो उससे मिल रहा है. वो डोमेन का और ट्रेडमार्क का आई थिंक दैट इज अ बिग, बहुत बड़ा लक की बात है, आपको मनपसंद चीज मिल जाए तो. आजकल और वो पसंद आ जाए, जो मिल जाए वो पसंद जो आ मिल जाए वो पसंद आ जाए, उसके साथ आप टाइम से पीस बना सको. सो आई थिंक आई वुड हैव लव्ड zebra.com एंड नॉट learn.com गिवन अ चॉइस. बट बट इट zebra.com कैरीज द ईथोस की क्या कर रहा है, क्या कर रहा पर्पस है, आ जाता है. नहीं तो purpose आ ज़ीब्रा जाता है. मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है. zebra नाम से आप शूज भी भेज सकते हो, किताबें भी हाँ, भेज तो सकते हो. लर्न आ गया. That I think worked well for us. So it built a lot of trust in the name as well. कि Zebra looks good, clean, and learn.com means you're telling what it is about. अनुराग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब इन दिस होल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ बुक, और इसमें हीरो कौन है? ठीक है, अब आपने एक एग्जांपल लिया कि, और आपने ऑथर्स के नाम लिए, आपने टॉपिक लिया, आपने पब्लिशर का नाम नहीं लिया कि ये बुक इस पब्लिशर की थी. ठीक है, तो इसमें हीरो कौन है? पब्लिशर हीरो है, टॉपिक हीरो है, कि ऑथर हीरो है? सर देखो, कोई भी बुक का हीरो तो उसका रीडर है. वो बुक जो पढ़ रहा है वो उसका हीरो है. उसकी ज़िंदगी में ये बुक क्या करने वाली है, बुक स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. आप अगर मान लेते हैं कि हम एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक से जब किसी के हाथ में जाएगी वो क्या उसकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा, किस हक से हम उससे 15-20 घंटे मांगे. दैट इज द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. अगर उसका आंसर है एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ. सो कस्टमर के लाइफ में एक ब्रेंडन केन एक ऑथर है जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ. ही टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया. तो ही सेज कि इफेक्ट ऑन द रीडर, इफेक्ट ऑन द व्यूअर, उनमें वो बोलते हैं ईओवी, इफेक्ट ऑन द रीडर कितना है, कितने कम टाइम में हम उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज़ वन पैरामीटर. नाउ सेकेंड पैरामीटर, वी गो वन मोर स्टेप बैक, इज़ द टॉपिक. क्योंकि ये बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है कि ऑथर कितना भी बड़े हो. बहुत बड़े बड़े ऑथर ने बहुत मीडियोकर बुक्स लिखी है और बहुत मीडियोकर ऑथर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स लिखी है. तो उसमें टॉपिक, क्योंकि टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नीड ऑफ द रीडर, कि वो खासकर मैं जो ज़्यादा चीज़ें बोल रहा हूँ ये सारा नॉन फिक्शन में ज़्यादा रेलेवेंट है. फिक्शन में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती है, बिकॉज फिक्शन में देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. नॉन फिक्शन में कई जगह सही गलत का वो एक बॉर्डर लाइन आ जाता है. तो जब हम बात कर रहे हैं कि टॉपिक क्या कौन सा नीड फुलफिल कर रहे हैं, हम मार्टेक बुक की एक एग्जांपल लिए. मार्टेक में मैं आपकी नीड फुलफिल कर सकता हूं कि मैं आपको 10 टूल सिखा सकता हूं मार्टेक के. मैं आपको मार्टेक का एज अ कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं. अगर आप तीसरा पॉइंट है, आपको एक छोटी दुकान है तो मैं आपको मार्टेक का एप्लीकेशन बता सकता हूं. आप एक बड़े प्लेयर है तो मैं आपको मार्टेक के सिस्टम्स बता सकता हूं. ऑल फोर आर 4 डिफरेंट बुक्स एंड मे बी सम ऑफ देम कंडेंस इनटू वन बुक, बट एट द एंड ऑफ इट हम यूजर के 4 अलग अलग एपेटाइट फुलफिल कर रहे हैं. एक यूजर जो
एक बुक है जो बड़ी कंपनीज को फायदा करेगा, शायद 20 लोग को फायदा करेगा, 20 लोग को बहुत फायदा करेगा। एक बुक है जो हम छोटे प्लेयर्स या रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज को फायदा करेगा, बट लाखों लाख लोग को फायदा करेगा। तो हर बुक का एक अलग कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टॉपिक कैसा है। टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें टॉपिक कमजोर होता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये हम लोग का लिमिटेशन है, या शायद बुक्स इंडस्ट्री का ही लिमिटेशन है। टॉपिक्स में दो तीन पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है टॉपिक बड़ा कितना है, टॉपिक सामने वाले के लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालने वाला है। इज इट अ पेन किलर या फिर इज इट अ Vitamin. हाँ वैसा ही, कि वो उसकी जिंदगी में गुड टू हैव है, या फिर एक एकदम अक्यूट पेन है जिसको, जैसे मार्टेक की बुक है या फिर लेट्स से ब्रांडोलॉजी की बुक है। ब्रांडोलॉजी की बुक एट दिस स्टेज फॉर मी इज अ पेन किलर। आई हैव टू हैव दैट स्किल राइट नाउ, गिवन द एक बार एक कॉन्सेप्ट ऑफ पेन किलर वर्सेस विटामिन्स को थोड़ा डबल समझाता है। पेन मतलब वेरी सिंपल, पेन किलर मतलब कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप एक्टिवली जाके कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप एक प्रॉब्लम है जो आप प्रॉब्लम अवेयर है, आप शायद प्रोडक्ट अवेयर नहीं है या है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। If I translate into digital thing, कि you find white spaces of places where people are interested but there is not enough books or content available in it. वाइट स्पेसेस थोड़ा सा खराब साउंड करेगा, बट आई ऑनेस्टली वी डोंट केयर अबाउट दैट मच कंपटीशन एंड ऑल। इसलिए क्योंकि बुक्स एक ऐसी कैटेगरी नहीं है जहाँ पे आप एप्पल वर्सेस सैमसंग है, क्या तो आप एप्पल लेंगे क्या आप सैमसंग लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर जरूरत है तो आप एप्पल भी लेंगे, सैमसंग भी लेंगे। क्योंकि आप मल्टीपल, और आपका कमिटमेंट कितना है, 1000 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए, आपका ओवरऑल कार्ट वैल्यू तो भी 2-3 हज़ार रुपए के आसपास ही रहने वाला है। अब 2-3 हज़ार रुपए ऐसे इनफ मनी है, बट इफ इट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो ये 2-3 हज़ार रुपए शायद एक डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस जितनी है एक टियर 1 सिटी में। तो बुक का दैट इज हाउ वी सी इट। नंबर 2, हम वी ऑल्सो सी इट कि हमारा जो फॉर्मेट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग फॉर्मेट्स इन बुक्स पर्टिकुलरली। तो वो जो फॉर्मेट है, वो जो एक्सपीरियंस है, रीडर एक्सपीरियंस, वो फॉर्मेट आई थिंक गिव्स अस बेटर कॉन्फिडेंस। जहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पे ऑलरेडी 5 लोग और compete कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम छठी बुक लेके जाए तो हम उस पर्टिकुलर 5 बुक्स का कुछ मार्केट अपनी तरफ पुल कर पाए, या हम अपना भी एक सोल्यूशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाए। आई डोंट हैव टू क्रिएट डिमांड। तो अनुराग, इसमें जो मुझे लगता है जो अभी करंट बुक्स का इकोसिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा ब्रोकन स्पेस है कि बुक अलग लिखी गई है, उसको उठा के आपने डिजिटल चढ़ा दिया है और किसी ने अलग ने पकड़ के रीड कर दिया है। तो ये 3 अलग चैनल बना दिए हैं, किसी ने सिंगल चैनल से उसको मल्टी चैनल बना दिया, बट एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस की कमी है। तो वाज दैट द गैप यू वर लुकिंग टू सॉल्व? सर व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड नॉट रियलाइज कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। ये सब कई सारी चीज़ें डिड हैपन एंड आर हैपनिंग एज वी गो अबाउट इट, कि ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप ये है, ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप ये है। जैसे हमने D2C से स्टार्ट किया एंड ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप वाज मार्केट प्लेसेस, फिर उसके बाद ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप बीच में एक क्विक कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी आई, फिर ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप इज रिटेल स्टोर्स, मल्टी स्टोर आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स जो बोलते हैं। तो थिंकिंग इज वेरी क्लियर सर कि एंड कस्टमर के लाइफ में बुक का रोल, एक बुक का रोल बहुत लिमिटेड है। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी, वी don't want to be part of a single step. So basically from just being a D2C book publisher, you are building a proper omni-channel approach to your I business. want to know कि उसकी लाइफ में वो क्या सॉल्व कर रहा है बुक से। दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके बाद तो हम लोग सर्च, वो हम लोग ने एक टूल लाया है अपने प्लेटफॉर्म पे, ZAI नाम से, चैट GPT जैसा इंटरफेस है, आंसर्स फ्रॉम द बुक। वहाँ पे व्हाट वी गेट इज कि वो यूजर की सर्च क्वेरीज मिलती है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सॉल्व फॉर देमसेल्व्स। जो रीडर ऊपर एक सर्च बार होता है, वहाँ पे यूजर सर्च करते हैं पर्सनल फाइनेंस बुक्स, टैक्स प्लानिंग बुक, ये सब चीजें जब लोग सर्च करते हैं, इट गिव्स अस दैट इन्फॉर्मेशन कि उनकी लाइफ में व्हाट आर दे ट्राइंग टू सॉल्व। देयर इज सो मच कंटेंट, मुझे ये एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, बट आपको जो ये स्किल बेस्ड चीजें हैं, आपको जो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड चीजें हैं, जहाँ पे शायद आप एक कोर्स नहीं करेंगे, आप 2 साल तक नहीं सीखेंगे। टैक्स प्लानिंग के लिए आप शायद 15 ही दिन सीखेंगे, लेकिन वो 15 दिन, ये सारे जो गैप्स है, ये सारे गैप्स बहुत अच्छे से वी वांट टू फर्स्ट नो कि ये गैप है आपकी लाइफ में। वेदर और नॉट यू बाय आवर बुक इज सेकेंडरी। यू बाय आवर बुक्स, वी फील दैट हमारा एक सोल्यूशन है जो काफी अच्छा है, बट आपको कोई और सोल्यूशन मिलता है तो भी इट, बट वी वांट टू नो हाउ इज योर जर्नी गोइंग एज ए लर्नर, एंड एज अ लर्नर नॉट एज अ रीडर। तो अनुराग, you told कि 90% of the books sold by Zebra Learn are physical copies, and you have cracked the code on physical copies. It's a very well designed book. In fact, बुक्स में जनरली पेज का कलर भी चेंज नहीं होता, आपके तो हर पेज आगे पीछे चेंज होते हैं, मुश्किल से वो 1-2 फोटो वाला पेज होता है। आई थिंक सो यू आर लाइक 100 GSM है ना, लोग तो 40-50-60 GSM पे खत्म हो जाते हैं, कुछ तो ब्लोटिंग पेपर बना देते हैं, बट द फील इज वेरी गुड। बट
तो ये डिजाइन फिजिकल बुक्स हो गई, बट व्हाट मेड यू लॉन्च एन ऐप? मतलब आपने मतलब जब बिकी ऑफलाइन रहा है तो हाँ। आपको डिजिटल एक्सपीरियंस पे इतना इन्वेस्ट क्यों करना पड़ा? सर डिजिटल एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि टच पॉइंट्स बुक में नहीं होते। आपको मैंने बुक शिप कर दी, उसके बाद आपने क्या किया मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ऐप का रोल लार्जली यही है कि आपके और ऐप हमारे लार्जली एक्वायर्ड कस्टमर्स है, एक्वायर्ड कस्टमर्स या रीडर्स, जो लोग हमसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ऐप हम लोग मतलब वी डोंट मार्केट इट टू जिन्होंने बुक्स हमसे नहीं खरीदी अभी तक। तो ऐप हमारे लिए एक टच पॉइंट है। उसमें दो चीज़ें हम करते हैं सर। एक जो हार्ड कॉपी का एक्सपीरियंस है दैट इज़ रियली गुड। अब सर हम इसको डिजिटल कॉपी में भी कॉपी रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग हार्ड कॉपी खरीदते हैं हमारे वेबसाइट से, हम सबको एक ई बुक फ्री में देते हैं। उसी सेम बुक का हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी फ्री में देते हैं, सो दैट वी नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड ऑल्सो जैसे आपने बोला कि आपको एक चुल है कि मुझे सब चाहिए, उसमें सब आता है। In fact, I'll tell you another piece. So when I was preparing for this podcast, I realized, and I was also exploring कि यार बुक लिखनी है, तो मैंने आपकी है ना बुकप्रेन्योर, ये मैंने लिखी ये है। आप ही ने लिखी है, हाँ। It's an amazing book. It really decodes how to write a book and how to sell a book. It's a very brilliant book. अब करना है, अब रात में ये पता चला कि अनुराग का पॉडकास्ट देखा, उसमें बताया कि इसने अपनी पूरी प्लेबुक इसमें डाल दी है। तो अब रात को 11:30 बजे आया कि बुक पढ़नी है, तो मैंने गया देखा, वहाँ पे मैंने दोनों ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो पहले डिजिटल बुक आ गई, हाँ, वो तो तुरंत फिर आ गया। हमने कहा फिजिकल आती रहेगी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, फिर जब फिजिकल आएगी बाकी वो पढ़ लेंगे। तो आई थिंक सो डिजिटल हेल्प्स यू गेट द पर्सन हुक्ड इमीडिएटली, यस। एंड कि चलो कुछ तो पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। बट अगर डीप एक्सपीरियंस चाहिए तो फिजिकल आ जाएगी। हाँ, वो भी। और दूसरी चीज़ है सर, डिजिटल की लाइफ टाइम वैल्यू है। मैंने एक बार आपको ये बुक भेज दी ना, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। हाँ, डिजिटल में मेरे पास आपके साथ एक रिलेशन है, अपग्रेड्स हैं। मैं उसमें बहुत कुछ आपको ऑफर कर सकता हूँ। तो हम लोग ने लास्ट 6 महीने में ये चेंजेस किए हैं, हर बुक के डिजिटल कॉपी के साथ एक ऑडियो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। एक वीडियो बुक जो हमने बनाया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। हर चैप्टर का 10-10 मिनट का समराइज्ड वीडियो है, लगभग 120-130 मिनट आते हैं। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, समरी देख लो, क्योंकि सब चैप्टर नहीं पढ़ो, टाइम बचेगा। हाँ, हाँ। तो हम लोग बुक्स भी लंबी बनाते हैं, 400-350 पेजेस की एवरेज बुक है। तो कुछ चैप्टर्स मत पढ़ो जो आपके काम की नहीं है। तो ऑडियो बुक हो गया। तीसरा ZAI हो गया। ZAI इज वेरी सिंपल, चैट जीपीटी जैसा है, उसका मच मोर सिंपलर वर्जन है। बट पॉइंट ये है कि रिट्रीवेबिलिटी में हेल्प करता है। आपने एक बार कुछ पढ़ लिया ना, आप उससे पूछो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ इस बुक के कंटेंट में से, और फिर उसके बाद वो ऑथर है ना, एट द एंड ऑफ इट बैक एंड पे एक इंसान ने जो बुक लिखी है। तो अब सब कुछ कर लिया, सब समझ गए, फिर लास्ट में आता है मीट दी ऑथर। उसमें आप ऑथर को डीएम करो ना लिंक्डइन पे। ऑथर्स लव, उनको आपको लगता है कि ऑथर्स को डिफिकल्ट है रीच आउट करना, ऑथर्स लव सच डीएम। आपको अगर कोई करता है ना डीएम, आप जब आपकी बुक आएगी, आपको कोई डीएम करता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, शायद जो चीज़ आप कंसल्टिंग में चार्ज करोगे, कहीं किसी की फीस X होगी, वो आप उससे कई ज़्यादा उनको जस्ट फॉर द लव ऑफ द बुक आप उनको दे दोगे। एंड एवरी ऑथर डज दिस। वो इतने पैशनेट होते हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो ये जो पूरा जर्नी है, ये सारी चीज़ें डिजिटल फुटप्रिंट से केटर हो सकती है। एंड एट द एंड ऑफ इट वो लर्नर की लाइफ में there is a problem that needs to be solved, and there are multiple touch points: a book, a video, something like ZAI, and last में एक इंसान। वो इंसान के लिव्ड एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट। आपने कनेक्टेड एक्सपीरियंस बना लिया। पीछे ना एक ऑथर थे, गणेश, के गणेश, आई डोंट नो इफ यू नो, he had written a book called Mastering Disruptions. It's a Okay. very interesting book. You should read it, especially for founders. He was the guy who thought कि इंडिया में फ्लिपकार्ट आ गया है, अब नेक्स्ट टाइप के ई कॉमर्स बिजनेसेस क्या होंगे। तो उन्होंने पूरी रिसर्च की और उन्होंने 2 गैप्स निकाले कि ज्वेलरी में आएगा नेक्स्ट और आएगा ग्रोसरी में, और उन्होंने 2 कंपनीज इन हाउस स्टार्ट करी। दैट वाज ब्लू स्टोन and Big Basket. Oh, wow. So he created the team, he created the fund, he hired people, he made them the founders, he took a stake, Okay. he incubated it and then he sold it off. So that's a great story for तो us. जैसे आप कर रहे हो Book बुक्स की में, value. तो वो ना सेक्टर्स निकालते हैं, और वो उनका बड़ा अच्छा वो है, उनके साथ पॉडकास्ट भी किया था, बट वो बुक बहुत अच्छी है। तो व्हाट आई डिड इज आई फिगर्ड आउट कि मैं आईएसबी में पढ़ाता हूँ, तो वो भी आईएसबी में पढ़ा रहे थे। मैंने कहा इनको कहीं देखा है, के गणेश है, फिर मैंने उनकी बुक देखी, मैंने कहा इनको पॉडकास्ट पे लाना है। अब क्या किया, गए ऑनलाइन बुक डाउनलोड की, पूरी रात भर बैठ के मतलब घिसा मारा, बुक पढ़ी। अगले दिन मैंने उनको मिला, फिर मैंने कहा आप के गणेश है, आई हैव रेड योर बुक, और उनकी बुक में से ना कोट्स याद कर लिए थे मैंने। आपने बुक में ये बोला था, आपने वैनिटी मेट्रिक का था, तो एंड आई रियली लव्ड इट, क्योंकि हर बुक में ना एक ऐसी यूनिक चीज होती है जो उन्हीं के पास होती है। उनकी उसमें था एक वैनिटी मैट्रिक्स की उन्होंने बात की थी कि
businesses should not chase vanity metric. One vanity metric is followers, क्योंकि वो shitty metric है, उसके बढ़ने घटने से कोई revenue का फर्क नहीं पड़ता. और दूसरा था एक virality question कि how do you get viral. तो वो था, तो वो उनको बात किया and he was so amazed, और हमने 4 घंटे गप्पे मारी. Very graciously accepted to come on my podcast and I had a blast. पर डिस्कनेक्टेड एक्सपीरियंस है कि बुक है, उनका पॉडकास्ट कहीं है, उनका लिंक कहीं है, तो आप खुद जाके सर्च करो, खुद जोड़ रहे हो. तो आई लव्ड इट कि यू आर कनेक्टिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अ यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो ऑमनी चैनल के ना मैं जनरली 3 एस्पेक्ट कहता हूँ. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू डिकोड योर ऑमनी चैनल स्ट्रेटेजी एंड ट्राइंग टू सी Correct. इन आवर फ्रेमवर्क वेयर इज द गैप. ठीक है, तो एक्सपीरियंस तो आपने कहा कि बुक फिजिकल है, डिजिटल है, पढ़ रहे हो, उसमें हमने ऑडियो भी डाल दिया, सर्च भी डाल दिया, एआई भी डाल दिया, और हमने उसको इन्फोग्राफिक बना दिया पढ़ने के लिए. बट अब इसमें मार्केटिंग कैसे होगी और सेल्स कैसे आएगी. तो इफ यू कुड जस्ट टॉक अबाउट वेयर डू यू डिस्कवर योर रीडर्स फ्रॉम. आई वुड नॉट से कस्टमर्स, क्योंकि एक फनी डेफिनेशन है, कस्टमर वो है जो कस्टमर है. ऐसा तो पर आपके जो रीडर्स हैं, लर्नर्स हैं जो हैं, वो कहाँ से आपको मिलते हैं? हाउ डू दे डिस्कवर द बुक्स? 2-3 लार्जली देखिए कैटेगरी वाइज 2 कैटेगरीज है जो हम करते हैं. एक है आई थिंक एज यू सेड D2C. सो आई थिंक D2C के जितने टूल्स हैं लगभग सारे हम यूज़ करते हैं. D2C पे थोड़ा एक्सप्लेन करिए, व्हाट डज D2C फॉर यू मीन? D2C for us means where we have a relation with the end customer. That is what D2C मतलब is. आपकी ज़ीब्रा लर्न की साइट पे आके लोग खरीद रहे हैं बुक. साइट पे आना इज अ मीन्स टू इट. मेरा अगर मैं आपको जानता हूँ हम्म. तो मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो दैट इज D2C फॉर मी. मतलब फिर ठीक है, देर आर मोर सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशंस कि डायरेक्ट टू कस्टमर, फिर आप उसमें डायरेक्टली बेसिक मतलब कि आप, मतलब उसने ज़ीब्रा लर्न से खरीदा है, तो चाहे अमेजोन से खरीदा, चाहे मेरी वेबसाइट से खरीदा. हाँ, अमेजोन में हमको पता नहीं चलता एग्जैक्टली लोग कौन है, बट कई बार लोग आके रिडीम करते हैं कुछ कॉपीज, ये सब चीजें तो पता चलता है, बट नॉट विद 100% एक्यूरेसी बिकॉज कनेक्टेड नहीं है ऑब्वियसली. सो दैट्स अ डिस्कनेक्टेड एक्सपीरियंस जो आप बोल रहे हैं. तो नोइंग द कस्टमर इज अ प्रायोरिटी फॉर यू. It is extreme. Knowing the customer and knowing what are they solving. Because every customer, आप क्यों बुक पढ़ोगे? पर ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या सॉल्व कर रहा क्या सॉल्व कर रहा है? देखो बहुत सारे तरीके होते हैं. आप एक रिसर्च पेपर है, एक रिसर्च पेपर ये कहता है कि आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं ना, पहली 7 बुक जो आपने टच की, फॉरगेट निकाला, पढ़ा, नथिंग, जो टच की, दैट इज अ वेरी गुड प्रेडिक्टर ऑफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स राइट नाउ इन योर लाइफ. सिर्फ पहली 7 बुक. एंड ये जो है, ये सर एवरीथिंग इट वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वेरी है. चलो ये ब्यूटीफुली. टच करते हैं. मैं ना अपनी बताता हूँ, मैंने पिछली 7 बुक्स क्या खरीदी है. बताओ, एंड डोंट टेल मी फ्रॉम अ पॉडकास्ट पर्सपेक्टिव कि ये आपने मैं किसी जरूरत वाइज खरीदी. आपने पॉडकास्ट के ऊपर कोई बुक ही नहीं है आज के डेट में, देखा जाए तो सच्चाई है. पॉडकास्ट से कहने का मतलब है कि मान लेते हैं बुक ट्रेनर आपने खरीदी क्योंकि आपको आज ये पॉडकास्ट शूट तो ये भी हो सकता है कि मेरे को बुक लिखनी थी इसलिए मैंने पढ़ी, तो हाँ, दिस इज अ बस, प्रायोरिटी बस, इन माय बस, लाइफ बस, राइट बस. नाउ, है ना. आप बताओ 7 बुक आपने क्या खरीदी है? भी मैंने बहुत बुक्स खरीदी हैं. तो मैंने एक खरीदी है, ये एक ऑथर हैं, इनकी सारी किताब खरीदी है. इनका नाम है रसेल ब्रंसन. रसेल ब्रांसन. हाँ. तो इनकी खरीदी है .com सीक्रेट्स, हाँ, ट्रैफिक सीक्रेट्स. क्यों तो खरीदी है? .com सीक्रेट्स और ये, क्योंकि हिज बुक्स आर ग्रेट टू अंडरस्टैंड B2B बिजनेस में मार्केटिंग कैसे होती है. ओके. तो ये मतलब अमेजिंग ये थी. दूसरी मैंने एक्सपर्ट सीक्रेट, उसकी बहुत अच्छी किताब है. उनकी 3 बुक्स है. फिर मैंने दूसरी खरीदी थी, ये एलेक्स कुल्ट की एक क्लिक हियर करके एक बुक है, अमेजिंग बुक. ही इज द CMO एंड हेड ऑफ एनालिटिक्स ऑफ मेटा. वाओ. उसने बुक लिखी है क्लिक हियर. तो ही टॉक्स अबाउट व्हाट, मतलब जो दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केटिंग का पैसा कमा रहा है उसका CMO, और वो लिख रहा है. इट्स अ अमेजिंग बुक है. वो अभी आई है, 6 महीने पहले आई है. तो मेटा भी मार्केटिंग कर रहा है बहुत इसके ऊपर. तो ये मेरी 3 थी. और मैं थोड़ा किंडल उठाता हूँ, है ना. किंडल में क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ, तो दूसरी अभी मेरी उसमें आ रहा है आर्ट ऑफ आस्किंग बेटर क्वेश्चंस. अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो अपने को क्वेश्चन पूछना है. फिर एक आई है, इसको स्किप करते हैं. द गाइड टू गो वायरल, और एक कस्टमर सेंट्रिसिटी. आप बताओ, इसमें मुझे क्या नहीं समझ आया? आपको आपके बारे में मुझे क्या नहीं समझ आया इसमें? आई हैव अ प्रोफाइल. मुझे पता है आप अभी लाइफ में कहाँ हो, क्या कर रहे हो. दिस इज वेरी इंडिकेटिव. ये ही चाहिए. D2C से मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एंड आई वांट टू हैव अ प्रिडिक्टिव, क्योंकि पता है पैटर्न्स होते हैं
ये बुक सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर दूसरे आपने कोई भी इन 20 बुक्स में से मैं एक बुक निकाल इन 8 बुक्स में से मैं एक बुक निकालूंगा, उस बुक के 20,000 लोग अगर पढ़ने वाले होंगे, उसमें से कम 3,000 लोग का सिमिलर बकेट बनेगा। हाँ ये बकेट्स है, ये यूज केसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स की लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ऊंची है। मैं इनको अगर मैं प्योरली कमर्शियल साइड से देखूं, यहाँ पे बहुत सारे अपसेल्स है, अपसेल्स को मैं जाने दूं, अगर वो सब साइड से नहीं देखूं, तो यहाँ पे एक पूरी जर्नी है जो इन 3,000 लोगों को लेनी है, उसमें से शायद 500 लोग ही सक्सेसफुली लेंगे, 2500 लोग विल स्टार्ट बिकॉज इट मेक्स नो सेंस टू रीड अ बुक। मजा नहीं आता है, आपको पहले पैसे भरने हैं, फिर टाइम भरना है, और फिर एफर्ट डालना है। नथिंग इज इन फॉर यू, बट एट द एंड ऑफ इट यू आर टेकिंग अ जर्नी। तो आप ये कह रहे हो 7 बुक्स अगर किसी की पता चल जाए तो मेरा प्रोफाइलिंग पता चलेगा कि व्हाट इज अभी द उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो इंस्टाग्राम रील्स भी तो इसी पे बिल्ट है। इंस्टाग्राम रील में चैलेंज है कि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, तो आप 7 रील क्या देख रहे हो, मेरा मूड खराब है, मैं ठीक कुछ है। भी देख रहा हूँ। तो आप तो लेट्स मूव टू द सेल्स चैनल। तो आप कह रहे हो कि फॉर यू वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नो द कस्टमर एंड व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन, दैट हेल्प्स यू फिगर आउट द पोर्टफोलियो ऑफ व्हाट इज ही सॉल्विंग फॉर For, राइट नाउ। हाँ। इंटरेस्टेड तो 25 चीज में लोग होते हैं, बट इंटरेस्टेड पड़ता है अभी क्या उसको कौन चीज, सा पेन किलर अभी चाहिए। क्या चल रहा है। जब मुझे पैर में चोट लगी है तो मुझे सिर्फ वो दिख रहा है, मुझे इंटरेस्ट मुझे क्रिकेट खेलने में है, बट वो अब जब आएगी तब बात करेंगे। आज मेरे को ये दिक्कत है, तो दिस इज जनरली, क्योंकि ये चीज इसलिए भी क्योंकि हमारा ऑफरिंग का सेट इज लिमिटेड, सो आई डोंट वांट टू गो आउट। आपका ऑफरिंग का सेट क्या है? हमारा सर लार्जली देखिए, हम फाइनेंस में बहुत अच्छा काम किया है हमने, मार्केटिंग में आई थिंक अब हमने ब्रिलियंट काम किया। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन इन मार्केटिंग। बिगिनर फ्रेंडली टाइटल्स हैं, बट उसके बाद जो टाइटल्स हैं दोज आर ब्रिलियंट। मतलब मार्केटिंग में क्या क्या है? मार्केटिंग में वी हैव मार्टेक के ऊपर एक बुक है, वी हैव अ बुक, वी स्टार्ट विद मार्केटिंग मेड इजी, व्हिच टॉक्स अबाउट बिगिनर्स, मतलब पीपल लाइक मी व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद आता है सर इमोशनल पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग, हाँ। मैसेजिंग के ऊपर, इट्स अ बुक दैट्स देयर। हाँ। उसके बाद आता है ब्रांडोलॉजी, दीज टू बुक गो वेरी वेल टुगेदर। फिर टूल साइड पे आता है मार्टेक की बुक आती है, और एक आता है डेटा स्टोरी टेलिंग बुक आती है। ये दोनों थोड़ी सी मैथमेटिकल सी बुक है, थोड़ी सी टूल बेस्ड बुक है। फिर उसके बाद उसके बाद B2B चैनल स्पेसिफिक आ जाता है, B2B मार्केटिंग। फिर उसके बाद आता है, आई एम मिसिंग अ फ्यू बुक्स, माइंडफुल मार्केटिंग विच इज मोर माइंडसेट ओरिएंटेड। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं फ्रेंचाइजिंग के ऊपर एक बुक, D2C के ऊपर बुक, वी आर डूइंग अ बुक ऑन हाउ टू वर्क विद गवर्नमेंट B2G बिजनेसेस के लिए। अच्छा। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंटेंट देयर, एंड इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। मुझे अगर वो बुक 3,000 लोग पढ़ रहे हैं ना, आई कैन जस्ट इमेजिन द वैल्यू दैट वी हैव क्रिएटेड। 3,000 बुक से जो हम कमाएंगे, बिजनेस में जो पैसे आएंगे, वो एक पार्ट है, बट इमेजिन द वैल्यू क्रिएशन। मतलब वी गेट दिस कस्टमर कॉल्स कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है 4 महीने पहले, आई हैव रेड योर माइंडफुल मार्केटिंग एंड आई हैव रेड योर ब्रांडोलॉजी बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग। टू मी दिस शुड नॉट बी देयर फर्स्ट 2 बुक्स, दैट इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। बट इफ आई कैन सॉल्व दिस, कि यार मेरे को क्लाइंट्स लाना है, पहले सेट ऑफ क्लाइंट्स लाना है, उस फेज में इफ आई कैन बी अ सपोर्ट टू समवन, दैट इज आई विल स्लीप वेरी वेल विद दैट। दैट एंड दिस इज वन स्टोरी। मुझे ये सारी स्टोरीज में इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि मतलब आप जब कुछ करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, पर्सनली शायद उतना नहीं भी, तो ये सब चीज़ों में हम कितना आपका, वी कैन शेयर द वेट, वी कैन गेट द राइट माइंड्स टू यू इन अ प्रोडक्टाइज्ड मैनर। अगर मैं सर्विस मैनर में लाके दूंगा, एवरी टाइम आई ब्रिंग योर टाइम टू एनीवन एल्स, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। ठीक है। तो हमने ऑनलाइन चैनल्स ऑफ सेल्स की बात करी, एंड इज देयर एनी प्लान्स टू गो ऑफलाइन? ऑफलाइन यस, वी आर वर्किंग क्वाइट एक्टिवली ऑन द सेम। तो हम लोग ऑनलाइन में अगेन वेरी क्विकली वी मिस्ड वन चैनल। हमने मेटा की बात की, गूगल की बात की, यूट्यूब की बात की, हमने वो हम Amazon- आएंगे मार्केटिंग चैनल्स में, अभी आएंगे। हमारे लिए ऑथर्स भी बहुत अच्छे चैनल है, अच्छा। because every author Brings their audience. Yeah, they bring their audience, and more than bringing their audience, a book is not about money for any author. हम जितने भी author के साथ काम करते हैं, book का जो income है probably not even in top 3, but identity wise, मतलब I have authors in front of me who have taken out their phone और उन्होंने पूरा अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल किया है कि कौन है जो मेरे को 25 लोग हैं जो मुझे बुक को पॉपुलराइज करने में हेल्प कर सकते हैं। देयर इज नो अमाउंट ऑफ मनी दैट आई कैन पे फॉर सच काइंड ऑफ एफर्ट बोल लो, या फिर मतलब आप यू हैव अ फ्रेंड, जैसे आशीष सर डिड अ podcast with you, I did not know you directly, you have this relation because he introduced us, and ये कितनी बड़ी अर्निंग है, या कितना बड़ा रेवेन्यू सोर्स एंड ऑल इज अ वेरी रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशन एंड इवन द ऑडियंस, कितनी सारी मतलब मल्टीपल, दिस इज अ वेरी बिग Asset with asset with created. us, and put together। देखिए एक ऑथर से
एक ऑथर का वैल्यू है, बट सम ऑफ पार्ट्स इज ग्रेटर, द वैल्यू ऑफ होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स. अगर 20 ऑथर एक कमरे में ना, उस कमरे की कीमत बहुत एक्सपेंसिव है. दैट इज अ बिग एसेट दैट आई थिंक वी हैव. हम्म. तो सेल्स पे जब हम omni channel सेल्स की बात कर रहे हैं, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोट आया था कि, या थॉट आया था, अर्लियर डिस्ट्रीब्यूशन वाज शेल्फ स्पेस, हाँ. है ना, टुडे इट इज फीड स्पेस. सो हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट चेंजिंग एंड हाउ यू आर अडॉप्टिंग vis-a-vis ट्रेडिशनल पब्लिशर्स? जैसे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स पेंगुइन वगैरह, वो तो मेरे ख्याल से उनकी वेबसाइट भी बड़ी उतनी ग्रेट नहीं होती. आप तो ऐप के अंदर तक चले गए, उसमें आपने ZAI भी बना दिया, आपने वीडियो पॉडकास्ट भी बना दिया, आपकी इंस्टाग्राम भी चल रही है, आप अलग ही लेवल पे चले गए हैं. नहीं, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है सर. देखिए, बुक्स एज अ स्पेस, आई हैव ऑलवेज हर्ड बोरिंग बिजनेसेस डू बेटर. तो बुक्स एज अ स्पेस आज के टाइम पे बहुत लोग नहीं एंटर करना चाहते. दैट्स एन अपॉर्चुनिटी. पेंगुइन और ये सारे ब्रांड्स में, नाम आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स, बट जो भी पॉपुलर वंस है, सारे दीज आर ऑल लेगेसी ब्रांड्स. लगभग 30, 40, 50, 70, 80 साल पुराने ब्रांड्स हैं. एंड ऑल्सो देर आर सर्टन वेज दैट जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है जो हम कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे. उनके पास शेल्फ स्पेस बहुत है. उनके पास ऐसे स्ट्रेंथ्स है जो हम मैच ही नहीं कर पाएंगे, बट कुछ स्ट्रेंथ्स ऐसे हैं जो शायद उनके वीकनेसेस बन गए अब, जो शायद ब्लाइंड स्पॉट्स है या ऐसे आप कह सकते हैं. वहाँ पे ज़ीब्रा लर्न जैसे प्लेयर्स या बाकी प्लेयर्स की ज़रूरत है टू फिल दैट स्पेस, एंड नॉट जस्ट फिल दैट स्पेस बट ऑल्सो take the messaging of leadership forward. Now coming to your question, shelf space versus feed space. देखिए, आज भी मेरा Which one do you own more right now? We own feed space for sure. Feed space because of कैसे our मेजर channels. करते हो? मेजर क्या करना है? शेल्फ स्पेस तो हम अभी तक हार्डली ऑफलाइन में है. हमने ऑफलाइन शायद 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उस पे पर काम फीड करना आपकी स्टार्ट किया. फीड कितनी है? मतलब इज देयर फीड एनी में देखिए, वी गेट नंबर्स. अगर मैं मेजर करूं, हम मेटा पे हर रोज लगभग 25 से 30 लाख, 25 से 1 लाख इंप्रेशंस करते हैं. 25 इम्प्रेशन? तो हर रोज ये इंप्रेशन से काफी विजिबिलिटी बिल्ड हो जाती है. सो मेटा पे करते हैं, फिर अमेजोन पे करते हैं. अमेजोन पे काफी कॉन्टेक्चुअल ऑडियंस रहता है. अमेजोन मतलब हम लोग इंटरनली काफी बोलते हैं कि मेटा पे लोग अपने दोस्त यार के साथ जाते हैं. इट्स लाइक कॉन्सर्ट. और जब इंटेंट ज्यादा होता है. अमेजोन पे जाते हैं तो वॉलेट लेके शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं लोग. हाँ. तो वो दोनों में माइंडसेट में बहुत फर्क है. तो बट अगेन, feed space is feed space. So you're moving from feed space to shelf space then? Feed space is something that makes you रिमेम्बरेबिलिटी, रिकॉलेबिलिटी, ये सब के एसेट्स हैं. मतलब अगर 25 लाख लोग रोज देख रहे हैं और लगातार लास्ट 3 साल 4 साल से देख रहे हैं, तो ये जो अवेयरनेस है, फिर शार्क टैंक हुआ, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के मैट्रिक्स है. ये सारा जो अवेयरनेस बिल्ड हो रहा है, इसको आपको आके टू फ्रुक्टिफाई इट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन. टिपिकल क्वेश्चन, ब्रांडिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन. आप मार्केटिंग में पैसे डाल दो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जगह पे नहीं है, बुक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो आपका ब्रांडिंग का पैसा, मार्केटिंग का पैसा कभी नीचे बनेगा ही नहीं ना, बिकॉज यू हेल्पिंग योर कॉम्पिटिटर्स इन दैट सेंस. तो दिस इज व्हाट आई विल से कि ऊपर जितनी भी एफर्ट हो रही है ना, नीचे वी वांट टू बी अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो कि ये ऑप्शंस है. तो जैसे अब टिपिकल D2C हो रहा है, पहले उन्होंने मैक्स आउट कर लिया ऑनलाइन, अब कह रहे हैं कि चलो अब मैं लोगों को फिजिकली विजिबल कराऊं. एंड आई एम श्योर अगर किसी ने आपकी बुक टच कर ली, बहुत मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई ऑनलाइन में हम बुक्स फील नहीं करवा सकते, उनको दिखा नहीं सकते, सिर्फ कवर दिखा सकते हैं, अंदर के तो आपका एक क्विज है कि कौन सा एक कैटेगरी है जिसको ऑनलाइन में बेचने में सबसे बड़ी दिक्कत होती होगी? कैटेगरी और इन बुक्स नहीं, जनरली इन D2C सर 50 है. मतलब आई थिंक कैटेगरी. आई एम सरप्राइज्ड. ब्यूटी एंड स्किन केयर, ये तो ऐसी चीजें हैं जो ट्राई दिक्कत करके नहीं लोग होती लेते है. हैं. इनको नहीं होती, बट होनी चाहिए. बट मुझे लगता है सबसे मुश्किल होना चाहिए फ्रेगनेंस को, क्योंकि स्मेल कैसे करोगे आप? बिकॉज सब कुछ दिखा सब सकते कुछ हैं, दिखा सकते बट हो. वो भी लोगों ने क्रैक कर लिया. मुझे लगता है वो शाहरुख ना. खान की जो परफ्यूम की बताते हैं वो 2 करता है, और शाहरुख खान की परफ्यूम आपने कौन सी सूंघी है, मैंने कौन सी सूंघी है, वो भी लोगों ने वो कर दिया. ज्वेलरी कर लिया. हाँ, ज्वेलरी इज आल्सो डिफिकल्ट. टच एंड फील इज अ वेरी की थिंग. एंड आई फील, अब मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ और मेरा हमेशा होता है जाते जाते ना एयरपोर्ट स्टोर पे जाके एक बार कर लो. और अगर आपके पास स्केपिया कार्ड है, आई एम नॉट प्रमोटिंग स्केपिया एट ऑल, बट स्केपिया में एक बड़ा अच्छा फीचर है, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, अगर आप 10-12 हज़ार रुपये महीने का खर्च करो ना, दे गिव यू 1000 रुपीज ऑफ एयरपोर्ट वाउचर टू स्पेंड. कुछ भी खरीदो. हाँ, तो मैं जाता हूँ हर बार एक बुक उठा लेता हूँ 1000 रुपए में. 1000 रुपये में, और वो उसका पैसा वापस आ जाता है. तो they have found a hook. So I think so. While many bookstores are getting closed, airport is a very good area. So is airport in your radar?
एयरपोर्ट्स पे वी आर पुटिंग आउट बुक्स। एयरपोर्ट में, इंडिया में एयरपोर्ट इकोनॉमी बुक्स की बहुत स्ट्रांग नहीं है। लार्जली 2-3 ही प्लेयर्स है, रिले है, हाँ, WH छोटे भी है। होते जा रहे हैं। हाँ। छोटे से ज़्यादा सर मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स बन रहे हैं। हाँ, उधर धीरे-धीरे द साइज़ ऑफ बुक्स इज़ चॉकलेट्स श्रिंकिंग, बट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन, क्योंकि होता क्या है, बुक इज़ अ ब्रिलियंट वे फॉर देम टू गेट ऑडियंस। हाँ, बुक के बिना फुटफॉल में वो स्ट्रगल करेंगे। आप कमोडिटी बेचो, फुटफॉल नहीं आएगा। बुक की वजह से ऑडियंस आती है, बट देन दे एंड अप बाइंग चॉकलेट्स, खाना-पीना, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक। 25 तरह की चीज़ें, तो वो मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स बन जाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज्ड टू बी। वर्सेस जब आप क्रॉसवर्ड और ये सारे सिटी स्टोर्स में जाते हैं, सिटी स्टोर्स में देन द प्रोपोर्शन ऑफ बुक्स इज मच हाँ, हायर। उसमें सिर्फ स्टेशनरी होगा, उससे उसमें ज़्यादा। स्टेशनरी फिर वाइट लेबल्ड होते हैं, उनके ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि उनके Margin ब्रांड्स ज़्यादा होंगे, होगा। क्योंकि मार्जिन बेटर हो जाता है, तो स्टोर इकोनॉमिक्स वर्क बेटर। तो इस तरह से, क्योंकि बुक्स में तो वो थर्ड पार्टी बुक्स है, राइट्स का बिजनेस है, तो मार्जिन एक्सपेंशन अपने प्रोडक्ट्स में हो जाता है जो कमोडिटी साइड पे है। तो इसमें मार्केटिंग कैसे होती है? ट्रेडिशनल बुक्स की मार्केटिंग कैसे होती है और आपकी कैसे होती है? ट्रेडिशनल लोग मार्केटिंग नहीं करते, इट्स अ बिग पेन पॉइंट फॉर ऑथर्स। आपने बहुत अच्छी बुक बना दी, आपने सब कर दिया, तो खुद ही ऑथर बेचारा जा जाके इधर-उधर ऑथर कर रहा इधर-उधर होगा। घूम रहा है, और पुराने पब्लिशर्स दे विल मेक मनी। Publishers, there is no way publisher through distribution, the only thing that they can lose is कि हमने 5,000 बुक प्रिंट करा ली, उसमें से 3,000 नहीं बिकी, वो इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है, now I have to dilute it at cheaper. That is the worst that it can get to. There is otherwise कोई मिक्स ही नहीं है जिसमें ट्रेडिशनल पब्लिशर पैसे गवाए, एक तरीके से गवा सकता है अगर वो मार्केटिंग कर दे तो। अच्छा। So that is how poorly the economics work. Versus with people like us, देखिए, आपने अपनी ऑडियंस बना ली है ना? हाँ, people like us, the cost of building that audience is something that we have to Because in traditional, I don't know whether I'm buying a Wiley or I'm buying somebody. I don't care about the publisher. Unless education में थोड़ा बहुत है, स्कूल की बुक्स में होता है कि recommendations का कि market है। ओसवाल की है, इसकी उसकी, जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं या टेस्ट प्रेप कर रहे हैं। recommendations, उसमें टीचर क्या recommend कर रही है, that matters a lot. हाँ, तो उसमें this is one तो thing your that we are marketing is what channels? our marketing, before with the channels, I think from a positioning perspective, we are very particular that we want to build the Zebra Learn brand. We want to get search for Zebra Learn marketing books, Zebra Learn HR books. मेरे पास Amazon का कुछ data है which says कि 93% of all books sold are generic searches. These are non-branded searches. We Across don't- all books. Across all books. मतलब across the people are category. looking for a problem, then People are looking for a then the book. problem. तो जब ये बात हो रही है, तो वहाँ पे वी वांट टू हैव अ पोजीशनिंग व्हिच इज, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट वाइट स्पेस देन, कि आप एक ब्रांड बना सकते हैं जो ब्रांड, I don't have to compete for brand level awareness. I have to compete by book, but people can come and search Zebra Learn marketing books, Zebra Learn HR books, Zebra Learn AI books, Zebra Learn finance books, and फिर उसमें जो सब कैटेगरी बन के आती है, उसमें से you pick and choose. Imagine this from a brand's perspective. So this is what we are looking to chase from a brand perspective, from a messaging perspective. तो अभी आपकी Amazon से कितनी सेल होगी? So Amazon से हम लगभग पूरा बिजनेस का अभी 40% करते हैं. तो एक टफ क्वेश्चन, Please, इज अमेजोन अ फ्रेंड और अ फो? FN. क्योंकि देखो, एक एंड पे आप उसके जैसा ऐप बना रहे हो, किंडल बना रहे हो, हाँ. एक एंड पे बुक्स को डायरेक्टली बेच रहे हो, तो अमेजोन आपका फ्रेंड है कि वो मतलब कैसे है? Amazon सर बिल्कुल फ्रेंड है, वो बिल्कुल नहीं है। आई टेल यू, Amazon जैसा ऐप बना रहे हैं, किंडल जैसा ऐप बना रहे हैं, उसमें हम किंडल जैसा ऐप नहीं बना रहे, हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हम दूसरों के प्रोडक्ट्स का उतना एक्सपीरियंस वी नॉट इन्वेस्टेड इन दैट। हम अपने एक्सपीरियंसेस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम वो चीज़ें करना चाह रहे हैं जिसमें हम जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं उसका जो एंड कस्टमर को एक्सपीरियंस जा रहा है, एंड रीडर को कस्टमर एक्सपीरियंस जा रहा है, वो हमारे कंट्रोल में हो। दैट इज द होल एंड सोल। एंड जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि Amazon बुक सेल्स के अराउंड ऑप्टिमाइज्ड है, Zebra Learn बुक रीडिंग के अराउंड ऑप्टिमाइज्ड है। उसमें माय ऑब्जेक्टिव इज कि पीपल रीड बुक्स, एंड वो उनकी लाइफ में कहाँ सेट हो रहा है, दैट इज समथिंग वी वांट टू बी इन्वॉल्वड इन। तो बेसिकली इफ आई लुक एट इट, व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप अमेजोन इज लाइक द बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर जहाँ पे सारी बुक्स हैं, तो मेरी भी बुक्स वहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी बुक ढूंढ रहा है तो उसको ज़ीब्रा लर्न की बुक मिलेगी, डिस्कवरी होगी, अपने आप आएगा कस्टमर। 100%। हो सकता है फिर वो मेरे से प्यार करने लगे या फिर मेरे यहाँ डायरेक्टली करे,
वो तो हर D2C D2C यही कहानी है। वो तो हर D2C की कहानी है एंड वो इट वर्क्स बोथ वेज। कई बार आपका कई सारे D2C में आपके लिए इट वर्क्स द अदर वे राउंड। आपका अवेयरनेस मार्केटिंग एक्सपेंसिव है तो आप चाहते हो कि फर्स्ट परचेज D2C पे आए बट रिपीट और फुलफिलमेंट आपका सारा मार्केट प्लेसेस पे आ जाए डिस्पाइट देयर कमीशन इट एंड्स अप ये चीपर। ब्यूटी वगैरह में है जब जहाँ पे AOV छोटा है। AOV छोटा है, वहाँ पे AOV छोटा है, वहाँ पे आपको ये करना पड़े, वहाँ पे फिर आपको मॉडर्न ट्रेड GT ये सब करना पड़े बिकॉज देन यू कांट अफोर्ड दैट फिक्स्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपको नीचे जाके कमीशंस पे काम करना पड़ता है विच इज़ मोर वेरिएबल इन नेचर। तो ये सब कई सारे चैनल्स के लिए मार्जिन प्रोफाइल्स बेटर वहाँ पे है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए रिपीट परचेज का बिजनेस है जहाँ पे वो अपने प्लेटफॉर्म पे है। मेरे आई डोंट पर्टिकुलरली केयर अबाउट वेयर दे आर बाइंग फ्रॉम। अमेजोन पे लोग खरीदते, एक डिमेरिट मुझे है, आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज। तो अगर आपने वो 7 बुक यू हैव टैप्ड दो 7 बुक्स दैट यू मेंशन बट मेरे पास आपका प्रोफाइल ही नहीं है तो मैं क्या कैसे पता लगा वो आप ही हो वो। तो इंटेंट उतना पता नहीं चला। हाँ तो पर अगर आप जो आप कह रहे हो कि डू यू गिव द इफ ही कम्स एंड रीड्स योर डिजिटल कॉपी ऑन योर प्लेटफॉर्म देन इट माइट बी दे आर वर्किंग आउट ऑन सम मैकेनिज्म्स जिसपे वो हमारे उधर एक्सपीरियंस कर सके, ऑल्सो हमारे वीडियोस और ये सब चीज़ ज़्यादा सिक्योर हो सके। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो रिस्पेक्ट अमेजोन का क्या पॉलिसीज़ और ये सब चीज़ें, बहुत सारे बॉर्डर लाइन्स है कि ये सही और ये सही है ये गलत है। तो अभी हम यहाँ पे नहीं है कि हम अमेजोन के बायर्स को अपनी बुक्स दे सके टेक्निकली, नहीं भी देते, मेजॉरिटी केसेस में नहीं देते। बट वो एक बार बुक करके आपकी ब्रांडिंग है वो अपने आप ही पर खुद ही ढूंढ के आ जाएगा। हाँ वो मतलब ओवरऑल सी अल्टीमेटली आइडिया इज कि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि उसकी जर्नी में बुक्स एक पार्ट है। उस वो एक रीडर को 10 चीज़ें चाहिए, बुक चाहिए, रीडर ऑथर चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुछ जो भी चीज़ें चाहिए सब कुछ अमेजोन तो बेचता ही नहीं है। ऑथर से मैं कैसे मिलवा दूँ अमेजोन पे? ऑथर के लिए तो लिंक्डइन पे ही मिल पाएंगे ऑथर से। तो ये सारी चीज़ें वी वांट टू, वो जो आपने बोला कनेक्टेड एक्सपीरियंस, वो कनेक्टेड हो ही नहीं पाएगा। तो जो आपके रीडर्स हैं वो रेगुलर रीडर्स होते हैं या फर्स्ट टाइम रीडर्स होते हैं? क्योंकि ये बुक्स इतनी अच्छी कई सारे फर्स्ट टाइम रीडर्स होते हैं। आई अच्छा। थिंक दैट इज आई वुड इज इट से अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। व्हाई? इट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। देखो आप, आई गेट द क्वेश्चन, गुड थिंग बिकॉज रीडरशिप इज बीइंग प्रमोटेड। क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ते हैं बुक्स, है ना? मतलब 10-15% लोग पढ़ते होंगे। डर जो है मेरा, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बुक पढ़ने के अराउंड जो डर है, सी आई एम वेरी सोल्ड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अ बुक। आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं नए लोग को बुक पढ़वा पा रहा हूँ, आई थिंक आई एम डूइंग माई जॉब वेल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम टू द जिम फॉर अ ट्रायल। गेटिंग देम, मैं इसको बहुत बार हम लोग इंटरनली जिम से कंपेयर करते हैं कि जिम जाने के जितने रेजिस्टेंस है, जितनी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें बुक्स पढ़ने के साथ भी है। और आपने बुक्स इंटरेस्टिंग बना दी ना एक Books तरीके से, क्योंकि interesting जब बना हम दी। बचपन में बुक्स पढ़ते थे उसमें इलिस्ट्रेशंस होते थे, सब होते थे, फिर एकदम से हम बड़े हो गए, बुक्स बोरिंग हो गई दिखने में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 तरह के जिम्स होते हैं। एक जिम होता है जो हम जाते हैं, हम सारा रनिंग ट्रेडमिल और ये सब चीज़ें करते हैं। एक जिम होता है जिसमें देयर इज म्यूजिक दैट्स प्लेइंग और सब लोग एज अ बैच वो म्यूजिकल जिम या ये सब चीज़ें करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? सेम काम हो रहा है, बस इसमें इट्स लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, इट्स लिटिल मोर एंगेजिंग, इट्स लॉट मोर, और इस वजह से आपके फिर दोस्ती बनती है या सोशल गेम्स होते हैं। इस वजह से यू आर मोर एंड मोर एंगेज्ड विद द जिम एंड दैट इज़ व्हाई आप डिफिकल्ट चीज़ करते जा रहे हो बट यू आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट्स। हमने शायद यही चीज़ करने की कोशिश की है। हम बार-बार बोलते हैं एक्सट्रीमली सीरियस कंटेंट बट लॉट ऑफ फन एंड प्रेजेंटेशन ऑन द आउटसाइड। मतलब ये मैंने बोरो किया IPL से, एक्सट्रीमली सीरियस क्रिकेट ऑन इन द रिंग, इनसाइड द रिंग एंड बाहर ऑल काइंड्स ऑफ फन, हल्ला जो भी। तो दैट इज द इथॉस कि बुक के साथ कंटेंट में भी आपने देखा होगा कभी भी देयर इज एब्सोल्युटली नो क्रिएटिविटी कि आपको यू हैव टू गिव द मोस्ट सीरियस कंटेंट दैट्स देयर। तो है ना, जिम के ऊपर ना एक कोट मैंने सुना था थोड़े दिन पहले, एडम ग्रांट करके, सारे इस पे अप्लाई करता है। आई एम टेलिंग यू विदाउट इवन हाँ, कि बुक पे भी अप्लाई करेगा। द हेवीएस्ट थिंग इन अ जिम इज द डोर। इट्स, आई विल से द हेवीएस्ट थिंग टू व्हाइल रीडिंग अ बुक इज द बुक। उठाने में ही जोर आता है। मतलब पहले उठाना, मतलब वही हो गया ना, तो वो door- आधा शोइंग अप इज हाफ द सक्सेस। हाँ तो एग्जैक्टली I told you without even hearing the quote. हाँ। तो अमेजिंग है, ये समझ में आ गया हमें कि चैनल्स अलग अलग हैं, एंड नेक्स्ट ईयर आई वुड सी अ लॉट ऑफ योर बुक्स इन Offline, ऑफलाइन for sure. विच विल गेट यू नेचुरल फुटफॉल। Yeah. बट डू यू एवर फील कि यार ये ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ कैनिबलाइजेशन आएगा? ये मैंने बहुत डर देखा है लोगों में। डर तो है ही, मतलब बहुत टाइम से भी है, बट डर से ज़्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी है। कहीं ना कहीं मैं अगर इफ आई स्टेप बैक,
we are going ahead with it. Let's see कैसे होता है, let's see क्या होता है, let's see how will it's learning for us. When we started Meta, we did not know what to expect. When we started Amazon, we did not know what to expect. In fact, जहाँ पे हमने बहुत उम्मीद बांधी कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो चीज़ हमसे नहीं हुई है. Because then you are so set in your ways, ऐसा होगा वैसा होगा. अभी हम सब चीज़, because there are so many veterans कि I spoke to some very good guys. I met Jayco as a team. They do brilliant offline. I met Westland. All these guys do brilliant offline. So one of the things which I have learned इसमें ना अनुराग, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना और टच एंड फील से कन्वर्जन बढ़ रहा है तो जबरदस्त चलेगा, प्रोवाइडेड दैट प्लेस गेट्स डिसेंट फुटफॉल. अब हो सकता है उससे ऑनलाइन जाके खरीद ले कि ऑफलाइन खरीद ले, आपको क्या फर्क पड़ता है, वो ज़ीब्रा लिंक की बुक्स खरीद रहा है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इसमें ना मुझे थोड़ा ये बताओ, थोड़े दिन पहले ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी आई थी अंकुर वारिगो की. उसकी किताब है ना कौन सी, एपिक शिट. हाँ, ठीक है, तो उसकी कंट्रोवर्सी आई थी कि किसी ने कहा था कि घोस्ट राइटिंग की हुई है, इसने नहीं लिखी है. तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट घोस्ट राइटिंग? I think it should be done. अगर घोस्ट राइटिंग नहीं होगा, अच्छे ऑथर्स कभी इज इट बैड टू डू घोस्ट राइटिंग? नो, बिल्कुल भी नहीं. देखिए, दो चीज़ है हम लोग के SOPs में ना. देयर आर टू रोल्स. वन इज एन ऑथर, वन इज अ राइटर. ऑथर और राइटर में फ़र्क होता है. ऑथर और राइटर सेम नहीं होता. ऑथर का काम है ज्ञान, राइटर का काम है वर्ड्स. समटाइम्स दीज पीपल आर सेम पीपल. You can be an author and a writer to your own book, but you can't be only writer and not an author to your own book. Author can be someone else. Author, आप अपनी बुक के author तो बनेंगे, writer हो सकता है कोई और हो जाए, and that is what ghost writing is. Ghost writing is a function of time and language and skill. वो चलो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं. ठीक है, हिस्टोरिकल एग्जांपल जो अपन डिस्कस कर रहे थे. महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने. वेद व्यास जी ने नहीं लिखी है. वेद व्यास जी ने डिक्टेट की थी गणेश जी को और गणेश जी ने लिखी है. तो और ये मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये. अभी अक्षय तृतीया हुई है. अक्षय तृतीया को केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, चार धाम जो है अपने उत्तराखंड के, उसके पट खुलते हैं. तो बद्रीनाथ के आगे जब ये पांडव जा रहे थे ना, तो एक गांव आता है माना विलेज. तो वहाँ पे एक व्यास गुफा है और एक गणेश गुफा है, दोनों ऊपर नीचे हैं. और उसमें ना हम पिक्चर डालेंगे इसकी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, मैं 2 बार गया हूँ, अमेजिंग. 2 गुफाएं ऊपर नीचे है. और उसमें ना गणेश जी को बोला गया था वो एक बार में लिखेंगे और ये एक बार में डिक्टेट करेंगे. वो बोलते रहते थे एक गुफा से, ये लिखते रहते थे खट 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 खट, वो ताम्रपत्र पे. तो घोस्ट राइटिंग तो महाभारत भी घोस्ट रिटर्न है. फिर बस घोस्ट राइटिंग तो बस यही है घोस्ट राइटिंग. तो अगर आप घोस्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट हटा देंगे तो अच्छी चीजें कभी लिखी. और वो घोस्ट भी नहीं है, गॉड राइटिंग है. दोनों लोग अपना अपना काम बेटर जानते हैं. एक के पास ज्ञान का सागर है, दूसरे के पास शब्द, सही वर्ड्स भी चूज करना एक काम है. तो आपने इसको प्रोसेस कैसे बनाया? एंड आई रियली लाइक द वे, एंड व्हेन वी विजिटेड योर ऑफिस यू हैव अ डीप डिस्कशन, द ऑथर गिव्स द मैन्युस्क्रिप्ट, देयर इज अ प्रॉपर डिजाइन टीम, ये स्टेप्स वो स्टेप्स, मैं खुद हिल गया था पढ़ के. और आपने किताब में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, आपकी ये जो बुक प्रेन्योर है. डेफिनेटली इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू राइट अ बुक एवर, दिस इज अ ग्रेट बुक टू. दिस इज द गुड, देयर एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दिस इन द कंट्री. हमने ये बेचने के लिए शायद कभी बनाया नहीं था. हमने खाली ये बात समझाने के लिए बनाया था कि बुक लिखना इतना मुश्किल है नहीं. तो बुक लिखने की प्रोसेस डिफाइन क्या है? मेरे ख्याल से आपने बुक लिखते हुए भी प्रोसेस बना ली होगी. बुक यही है सर. अल्टीमेटली पब्लिशिंग एक प्रोसेस का काम है. मैं अगर कल सुबह बहुत एनर्जी आ गई, आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं 2 महीने में जो बुक बननी है मैं 10 दिन में नहीं बना लूंगा. तो लेट्स डिकोड इट. ओके, इफ समबडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट इज वांटिंग टू राइट अ बुक, तो व्हाट इज द प्रोसेस ही विल गो थ्रू? देखिए, राइटिंग अ बुक में एवरी बुक फॉर अस इज सेम व्हेन इट कम्स टू अस. एक ऑथर बड़े हैं, छोटे हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर. व्हेन अ बुक कम्स, इट्स अ बुक, इट्स एन एप्लीकेशन. हम लोग इसमें 3 चीज़ देखते हैं. सबसे पहला हो गया टॉपिक. वो टॉपिक हमारे लिए कहीं ना कहीं एक माइक्रो VC वाला काम है, वेंचर. अगर आप देखेंगे कि ये टॉपिक चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसका. और लार्जली 3-4 फंक्शंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं कि टॉपिक है कितना बड़ा. उसमें हम गूगल के सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं, दूसरी बुक्स कितना चल रही है, कोर्सेज कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं. दूसरा होता है हम उसके ऊपर रीडर के लिए इम्पैक्ट कितना क्रिएट करेगा, पेन किलर वर्सेज विटामिन्स. एंड तीसरा, रीडर के लिए is the reader willing to commit to this topic or flirting with the topic? What do you mean by this? कई सारे टॉपिक है जहाँ पे people are flirting with that topic, they are not committed to that topic. जैसे अब I will have to think of an example, but अगर मैं example बोलूँ, committed to it. I keep saving a lot of healthy food recipes on my Instagram.
but I have not tried one. Maybe I have tried one in 6 हाँ, months. बट रख लेते हैं कि शायद कभी जरूरत पड़ेगी, बट कभी मैं उसके ऊपर पैसा खर्च करके बुक नहीं खरीदने वाला हूँ. मेरे इस बिहेवियर से अगर कोई मुझे आके प्रॉमिस करे कि ये बुक खरीद लो, आई एम नॉट गोइंग, आई एम फ्लर्टिंग विद दैट टॉपिक. आई एम नॉट येट वर्सेस मैं जाके कुछ एफर्ट लूँ, कुछ गलती करूँ, कुछ जलाऊं किचन में, कुछ खराब करूँ, डजंट मैटर, बट आई एम कमिटेड टू दैट टॉपिक. सो दिस इज, ये 2-3 क्वेश्चन है टॉपिक के सिलेक्शन पे. तो टॉपिक पे हमको क्लैरिटी हो गई, दैट इज नंबर 1. विदाउट दैट वी तो टॉपिक इज द सेंटर कि ये टॉपिक इज द हीरो. टॉपिक के बिना कमजोर बुक, मतलब अगर टॉपिक खराब है तो हमसे नहीं बिकती है, फिर वो ऑथर को ही बेचनी पड़ती है. दूसरी चीज है फिर ऑथर. ऑथर पे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कि एटलीस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द बुक इज. सीनियर लेवल से नहीं, जूनियर लेवल से नहीं. तो अथॉरिटी हो उसमें उस टॉपिक के ऊपर. हैंड्स ऑन. मुझे ये नहीं चाहिए कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के एमडी, नॉन एग्जीक्यूटिव सीईओ, ऐसा सब टाइप का नॉन एग्जीक्यूटिव रोल पे है. आई डोंट वांट दैट. आई वांट यू टू बी हैंड्स ऑन विद इट. ओनली देन, बिकॉज ओनली तभी तो आप लिखोगे कि क्या है, वरना मुझे कंटेंट बताना पड़ेगा. एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद मार्टेक. मतलब मैं क्या, वो क्या बताऊंगा. तीसरी चीज हो गई उसके अंदर कि वंस वी हैव द ऑथर, वंस वी हैव द टॉपिक, ऑथर, तीसरी चीज आती है इंडेक्स. अच्छा. तो ऑथर से स्टेप 1 पे इंडेक्स बनाते हैं बिफोर इवन वी स्टार्ट टॉकिंग. कि उसके दिमाग में वो है कि विजन है ये बुक का. मुझे वो बुक देख के समझ आ जाता है कि इंडेक्स देख के हमको, एंड आर टीम, बिकॉज वी सी अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 इंडेक्सेस एवरी डे. तो 5 से 7 इंडेक्स देख के समझ आ जाता है बुक जा का रही है. और बिफोर दैट ऑथर, कोई ऑथर है ना जो ऑथर सीरियस नहीं होता. अगेन कई लोग आते हैं जिनको आई वांट टू राइट अ बुक बट दे नॉट विलिंग टू पुट इंडेक्स. बनाना भी 2 घंटे का काम है. अब विन चैट जीपीटी से बना के. वेरी इजी आंसर. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्वालिफिकेशन में यहीं पे खत्म क्वालिफिकेशन हो वहाँ पे टाइम एंड इंटेंट का क्वालिफिकेशन, नॉट अ वेरी स्ट्रांग क्वालिफिकेशन बट अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन. अगर वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेहनत करवा रहा है, ब्रिलियंट साइन. ब्रिलियंट साइन की बताओ ये ऐसे टिपिकली दे डोंट सजेस्ट कि कंसीडर ये करो देन दे कैन ऑलवेज गेट बैक ये ऐड करो फिर आप टूल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस विच टॉपिक्स का ये सब सजेशन हम उनको देंगे. बट स्टेप 1 फर्स्ट इंडेक्स हैज टू कम फ्रॉम ये इसकी बेसिस से आप बुक सिलेक्शन गेट्स डन. फिर उसके बाद I'm sorry getting this I is the topic but this is तो ये हो गया, सिलेक्शन हो गया. अब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि चलो हम बुक बनाते हैं. तब ये आगे क्या होता है, वो अब आगे देखिए, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप. आगे पहले तो ये सब होता ही नहीं था. अच्छा. पहले तो लिटरेचर एजेंट आता था. लिटरेचर एजेंट आप लोग से मतलब है कि ऑथर लोग से सबसे बात करते थे. लिटरेचर एजेंट अपना कमर्शियल फिक्स करते थे और इनके साथ, ऑथर्स के साथ. फिर वहां से जाके वो 10 सब जगह अपना सबमिट करते थे. एंड बेसिस दैट तो मैन्युस्क्रिप्ट पूरी बनने के बाद फिर आता था पब्लिशर. बनने के बाद, नहीं तो कम से कम 20-25 पन्ने बनने के बाद. एंड टिपिकली नो वन गेट्स इन्वॉल्व इन राइटिंग, खासकर बड़े पब्लिशर्स, अनलेस इट्स अ वेरी स्टार बुक. अब मान लीजिए शाहरुख खान सर बुक लिख रहे हैं तो कोई भी पब्लिशर उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएगा. बट टिपिकली वो लिटरेचर एजेंट के थ्रू कई सारा काम हो जाता है. कई सारा काम अब डायरेक्ट भी होने लग गया, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी हैज इंप्रूव्ड बोथ वेज फॉर ऑथर टू पब्लिशर एंड ठीक है, समझ में आ गया. मूवीज याद आ रही हैं जिसमें बुक लिख रहे होते थे, फिर कहते थे उसने बोला अभी तक दो, ये तो. हाँ, तो वो लिटरेचर एजेंट्स के थ्रू होता था. अब वो डायरेक्ट भी कई जगह होता है. अब इसके बाद सबमिशंस, ये सबमिशंस का काम जो है ना वो होता है कि ऑथर को प्रोसेस से बाहर निकालना. अच्छा. ऑथर के बिना, ऑथर का ज्ञान एक प्रोडक्टाइज्ड फॉर्मेट में लेना. तो वो कैसे ये लेते काम हैं? पहले मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्मेट होता था. ऑथर यूज्ड टू सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट. हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे इंजीनियर किया. वी बिल्ट अ टूल कॉल्ड ज़ीब्रा लर्न स्टूडियो. हम लोग उसमें अब कुछ एआई की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एडिटिंग अब हम लगभग पूरा एआई से करते हैं. ये सब उसमें क्या करते हैं, हम 6 फॉर्मेट्स में सबमिशन लेते हैं. पहला, आप पूरी बुक मैन्युस्क्रिप्ट दे दो, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट. स्टिल इज द बेस्ट फॉर्मेट बट द स्लोएस्ट फॉर्मेट. आई एम नॉट एबल टू गेट बेस्ट ऑथर्स ऑन दिस फॉर्मेट. जो आज एक्टिव सीईओज है, ये लोग इस फॉर्मेट में कभी काम नहीं करेंगे. नंबर 2 हो गया, हम आपसे वीडियो नोट्स और वॉइस नोट्स ले लेते हैं. आप पूरी चीज़ वॉइस नोट्स में बना के दे दो. एंड वो बुक आपको देन विल असाइन अ घोस्ट राइटर एंड गेट द बुक आउट. एंड सेम फॉर वीडियो नोट्स. तीसरी चीज़ हो गई, आप इसको एक कोर्स फॉर्मेट में बना के दे दो और वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर. कोर्स फॉर्मेट में द बुक हैज़ मोर डिटेलिंग इन इट. फिर उसके बाद ये 3 फॉर्मेट हो गए. फिर फॉर्मेट होता है, हम आपके ऑफिस में आ जाएंगे, आप हमारे ऑफिस पे आ जाओ, 2-3 दिन टाइम बताओ. एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डीपर फॉर्मेट्स, बिकॉज आप इंसान बोलता ज़्यादा है, लिखता कम है. सो अगर आप बोल रहे हैं तो यू आर टॉकिंग मच मोर. अगर मैं ये सेम बात आपको ईमेल पे समझा रहा होता, आई वुड हैव प्रोबेबली टेकन 4 पैराग्राफ. दिस इज टेकिंग 10 मिनट्स. 10 मिनट में आपको कॉन्टेक्चुअली ज़्यादा बातें बता पा रहा हूँ. तो तीसरी बात ये हो गई. नेक्स्ट ये हो गया. जनरली ये कुछ फॉर्मेट्स है, और भी फॉर्मेट. ठीक है, तो आपने सबमिशन ले लिया वॉइस ऑडियो टेक्स्ट के फॉर्म में. इसमें ऑथर इज नाउ आउट. अच्छा, इसके बाद खत्म कि तुमने ध्यान दे दिया. ऑथर का अप्रूवल का काम कई सब जगह पे. बट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, मेरा
source of knowledge and knowledge are two separate. You have downloaded the author's I have content. downloaded and productized it. Now I have to just package it. Baki publishing process is designed on an approval basis. कि author is still the owner of the content is author. Book पे Zebra Learn का नाम लिखना है, but mainly author का नाम लिखना है. Zebra Learn का नाम 25 बुक पे लिखाता है, author का नाम उसी एक बुक पे लिखाना है. तो then it's their reputation at stake. So they are the ones who are owners. We are the ones who are distributors. तो उसमें हमारी टीम उसको पैकेज करती है in our guidelines. वहाँ पे we don't give a lot of flexibility to authors. Not because authors, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि authors कई बार अपनी बुक को खुद किल कर लेते हैं. Just by being इसको ऐसे नहीं वैसे नहीं without context. कई सारी कि आपने चीज़ें- इतनी बुक्स लिख ली, हाँ, कॉन्टेक्चुअली समझ आ जाता है, देख के समझ आ जाता है. कई सारे बुक का नाम आप इतना पर्टिकुलर नाम रख दो, समझ ही नहीं आ रहा है वो बुक है क्या चीज़. ये सब कुछ ऑब्वियस मिस्टेक्स है जो हम लोग ने कर रखा है पहले, तो वापस क्यों करना है. तो इट्स एन अप्रूवल बेस्ड सिस्टम. वहाँ पे वी डोंट लेट authors decide, but it still has to be approved by them. So it somewhere balances par. और फिर बुक बन जाती है, रेडी हो जाती है, फिर वो प्लेटफॉर्म पे चली जाती है. Then there is a pre-release checklist that we run through it. लगभग महीना भर लगता है. Then a post-release checklist and then the marketing and So- distribution plan. roughly from a perspective of from the time you onboard the author, मतलब signing the agreement to hitting the copy to first sale, इसमें कितना? As less as 3 months, as high as we have done much Generally poorer- 6 months to नहीं, average 4.5 4.5 months तक 4.5 months shelf हो पे जाता पहुंच जाती है. shelf पे पहुंच जाती है. Amazing यार. तो generally your authors are first time authors or are these like repeated authors? दो सब तरह के होते हैं. एक चीज़ जो नॉन नेगोशिएबल है, वी डोंट वांट टू वर्क विद जो आप मूवीज में देखते हैं टिपिकल पर्सोना ऑफ एन ऑथर. वी वांट टू वर्क विद पीपल हु हैव डन देयर वर्क, Who are in practice? who are in practice and are doing their work or have done for long enough time and can solve the reader's problem, can solve the reader's pain point. Generally ये लोग executives होते हैं, ये लोग और आपके 10-12 टॉपिक्स भी ऐसे ही हैं, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ऐसे- मार्केटिंग, और इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि यू नीड पीपल इन प्रैक्टिस. हाँ, we need people in practice and see, ultimately the book will not evolve till the next edition, but the backend is an author, then that person's knowledge is still evolving. तो अभी कैटेगरीज क्या क्या हो गई? फाइनेंस से आपने शुरू किया जो आपका पर्सनल था. मार्केटिंग है, Marketing. फाइनेंस के अंदर भी सब टॉपिक है. फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर में आई थिंक वी हैव द बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट अच्छा. इन द कंट्री. एचआर में 3 बुक का सेट है, हरजीत सर ने लिखा है. इट्स ब्रिलियंट. मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर बुक ऑन एचआर इन द कंट्री. उसके अलावा एआई के ऊपर हमारी बुक्स है, स्टार्टअप्स के अराउंड कुछ बुक्स है. एक स्टार्टअपोलॉजी है, बढ़िया अच्छी. स्टार्टअपोलॉजी है, फंड रेजिंग डिकोडेड है, इंडस्ट्री हैंडबुक है. इस तरह से जॉनर ऑफ बुक्स. फिर कुछ एमएसएमई स्पेसिफिक बुक्स है, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए आप अभी वी आर डूइंग अ बुक ऑन एआई ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा. एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई भी है. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन अ कैटेगरी, इट्स सेपरेट कैटेगरी इन इटसेल्फ. फिर कुछ इंडिविजुअल बुक्स भी है जो करियर स्पेसिफिक है, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग वाली जो है. पर्सनल ब्रांडिंग तो शायद मैं मार्केटिंग में क्वालिफाई करूंगा. इंटरव्यू रेडी, आगे के क्या करियर्स होंगे 2040-50 में, बैंकिंग में करियर. तो मैं देख रहा था स्कूल की भी बुक्स डाल रहे हो. स्कूल की बुक सर हमने 6, 7, 8, 9 की बनाई है. लास्ट ईयर वी डिड इट. इनफैक्ट शार्क टैंक वाले टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया था. नाउ वी आर डूइंग ऑल 5 सब्जेक्ट्स ऑफ इट. अच्छा. स्कूल की बुक्स में तो मेरा यंगर सन इज इन 7th, तो मैं लूंगा आपसे. नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली he'll be reading a Zebra Learn book. हाँ, तो 7th में आ चुका है, देखते हैं. School की books are very very passionate about it, aggressive about it. Reason for that is I know we can do a much better job than what's being done. We want to blur the lines between book and an edtech Amazing. for school books. तो अनुराग, आपने ना शार्क टैंक बहुत बार ले लिया. अब मैं बहुत क्यूरियस हो गया हूँ. तो शार्क टैंक कब हुआ था, क्या हुआ था? थोड़ा सा. Definitely I'm assuming many people have watched it. We'll put the link for the episode. It was an amazing episode. I think so. वो मुझे अभी भी याद है. How to explain the concept of stock investing. वो जो आपने कुछ लैंड का तोड़ के वो लाइक एग्जांपल बताया था. और एक आपने वो क्या एरोप्लेन वाला क्या था वो जस्ट वो तो उनके राइटर से आई कांट रिपीट इट. बेसिकली वो इंस्पायर्ड था 3 इडियट्स का वो scene हाँ है ना, वो जो जहाँ पे वो मशीन की एक्सप्लेनेशन देता है जिप के. हाँ. आई थिंक इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट. हमने एरोप्लेन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया था एंड देन सेड कि आवर बुक सिंप्लीफाइड जस्ट लाइक दिस. तो फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव देखिए, शार्क टैंक आई थिंक इज अ brilliant milestone for did any it skyrocket you? It did. I'll tell you, it did skyrocket on the supply side. We still feel the impact. आज सप्लाई मतलब supply side हम लोग है ना, supply side सारे author relations, we work with very good brands, we work with very good universities. ये सब जो जहाँ से content आता है
उनको हम सप्लाई साइड बोलते तो मेरे ख्याल से ना मुझे तभी था जब मैंने एपिसोड देखा था, आई थिंक सो लास्ट ईयर आया था ना, तभी मैंने कहा था यार यहाँ पे लिख सकते हैं वो की अच्छी एरिया है। हैं। दैट इज इमेजिन एंड आज भी कई बार होता है कि उन्होंने ऑडियंस दिया एंड वी यूज वी दे कम टू अस। सेकंड होता है कि हमने भी वो वीडियो तो अब एक एक्टिव वीडियो है ना, नाउ आई कैन टेक इट, आई इफ यू डोंट नो अस आई कैन ऑलवेज शो। इनफैक्ट अ वेरी फनी एग्जांपल, लास्ट 2 मंथ्स बैक आई वेंट फॉर यूएस वीजा अपॉइंटमेंट। वो इंटरव्यू लेते हैं छोटा सा, उस इंटरव्यू में 2-3 मिनट बात हुई, फिर एक बात पे उन्होंने वो लोग ने बोला क्यों जाना है, ऐसा 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 काम है, हम ये कर रहे हैं यूएस एक्सपेंशन। उसमें शार्क टैंक का नाम मैंने लिया। He quickly opened up Shark Tank. Visa is approved. I don't know if it's related or not, but it get the trust. it builds The reputation. trust. The trust. But I think that video has a lot of trust for us. आज भी मैं कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, we send them that video. So I think half that battle is won before the meeting itself. और हम लोग email signatures में use करते हैं. On the demand side, reader side पे see one of our large expenses is media for discovery of brand. So Shark Tank की जो discovery थी, I don't think we did enjoy that for a month on the demand side. उसके बाद we came down to business as usual. Now on the demand side as well, it's a trust mechanism. इसको दिखा के मैं trust generate कर पा रहा हूँ, but It opens doors, हाँ. Customer नहीं खोलेंगे, but not a discovery tool. ऐसा नहीं होने वाला है कि लोग उनको देख के, शार्क टैंक के वीडियो को देख के या शार्क टैंक को देख के ज़ीब्रा लर्न के पास आ रहे हैं. दैट्स आई थिंक अ वेरी स्मॉल सबसेट इवन अगर हो रहा हो, बट दैट शिप हैज सेल्ड नाउ. इट हैज बीन अबाउट 1.5 years since we shot, 1 year since it aired. So that is the experience right now. I think on the demand side, I think for the next 5 years it will add a lot of value, or next 3 years. But after that, I think we also have a task at hand to grow beyond that identity, because that will be the next step that we would want to take. कि अभी आप बोलते हो आप शार्क टैंक पे आए हो, कल को शार्क टैंक बोले कि ज़ीब्रा लर्न हमारे पास आया था। Hopefully yes, for sure. Going beyond the identity means we do get Shark Tank episodes, we do get a foot in the door, but at the end of it, You have to deliver the sales and the numbers and the value in the relation. Otherwise, I can have a friendly relation, but I'll not have a business relation for very long. बट वो डोर ओपनिंग इज वेरी Door opening is very important, because जो चीज़ मैं ईमेल लिखूँ और जवाब नहीं आ रहा है 10 दिन तक, और वो सिग्नेचर लगाने से 4 दिन में आ रहा है, that is important. अमेजिंग। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, तो अब छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, मेरा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो विच इज द बुक विच इज नॉन ज़ीब्रा लर्न जो आपने बहुत बार पढ़ी है और जो आप मतलब बार बार पढ़ते रहते हो या लोगों को बोलते हो कि यार ये बुक जरूर पढ़ना है? 3 बुक्स है मैं जो इसके लिए, बिजनेस मॉडल जनरेशन, I think I love that book. It's a very simplistic book and very effective book to help organize your thoughts. Number 2, a little more complicated book, Michael Porter, Competitive Strategy. I think it's a gold mine, and as an extension, Competitive Advantage. अगर ये 2 बुक्स, तो आपने मार्केटिंग पढ़ी है? नहीं, स्ट्रैटेजिक में एमबीए नहीं, एमबीए किया आपने? मैंने MBA नहीं किया, मैंने किया है बट इट्स अगेन मतलब पर ये जो बुक्स वहाँ पे मैंने मार्केटिंग के ऊपर, पता है मैंने क्या किया था मार्केटिंग के ऊपर है ना, मैंने इन 2019 आई टुक अबाउट 3-4 मंथ्स, आई वाज रीडिंग लगभग 3 दिन में एक मार्केटिंग, 4 दिन में एक मार्केटिंग बुक पढ़ रहा था। आई स्टार्टेड विद दिस इज मार्केटिंग बाय सेठ कोड, फिर मैंने उनकी 7-8 बुक्स पढ़ी। हाउ इज इट? मैंने कभी पढ़ा नहीं हूँ। I think from when I was not in a position to judge, because I was very बट इट्स nice गुड to the फॉर field. 0 to 1। वेरी वेरी गुड, सिंपल है, समझ आ जाता है। दुख के नाम में अस्सी पर्पल काउ, आज भी मेरे दिमाग में अलग कैसे बने पर्पल काउ, इज इट अ पर्पल काउ येट, मतलब ये पॉडकास्ट अलग है क्या, इज इट अ पर्पल काउ येट, दैट माइंडसेट। एनालॉजी इतनी अच्छी है। एनालॉजी इतनी अच्छी है। दिस इज मार्केटिंग, आई थिंक एवरीवन शुड रीड। उसके अलावा मैंने आई रेड इंडिविजुअल बुक, आई थिंक आई रेड दिस बुक फॉर मार्केटिंग, एलन डिब, 1-page marketing plan. I think that is the book where one should start learning marketing, because वो 9 tranches में तोड़ देते हैं। तो टेल मी वन बुक विच यू फील विश ज़ीब्रा लर्न में ऐसी बुक होनी चाहिए। 1-page page marketing और business model generation, these 2 are framework books. दोनों frameworks, and I think brilliant businesses have been built on both these books. What is one of your favorite ज़ीब्रा लर्न बुक्स कि यार ये तो मेरी, मतलब you feel proud about it? Power of Emotional Marketing. Power of Emotion. There are so many more, but Power of Emotional Marketing, the time that it came, I think I gained a lot of confidence कि यार हम ऐसा काम कर सकते हैं तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। और and I think on similar lines now, even something like a Brandology, again both of these books look very identical, but I think I take a lot of pride in these, and then so many others as well. What is the book you're reading now?
I am reading, there's a book, I forgot the name, but there's a book जहाँ पे उन्होंने 25 हार्वर्ड HBS के फाउंडर्स का इंटरव्यू लिया है. HBS के स्टूडेंट्स who later went on to become founders, very intellectual guys, and they took interviews which are on top interviews that are not interviews directly. They had a set of about 18-19 questions, controversial ones, जहाँ पे there is no right and wrong, and then they tried to add one opinion to it. Second, they added, and good successful founders, they added opinion to it, and they added stats to it. कि 25 लोग में से 18 लोगों ने बोला कि we should not raise capital before X. So things like that. That is one book, and second book is it's little more to do with a personal side, the courage to not to be disliked. हाँ बहुत I अच्छी think है. मैंने पढ़ी नहीं है. I've just It's read a couple of- अमेजिंग बुक. उसका ना माइकल I don't जो भी है, remember the names. बट उसके पहले ना उसका वीडियो देखो. मैं देखता हूँ. वो इतना हार्ड हिट करता है ना, करेज टू बी डिसलाइक. इट्स बुक मुझे अंदर से हिला दिया था. I'll tell you why I'm reading this, because a lot of places, see, Zebra Learn is a very people-heavy business. We have relations with authors, readers, and employees, investors, distribution, vendors. There's no machinery, there's no तो lot of places शायद आपने कुछ चीज़ बोली जो business के लिए मुझे पता है कि गलत है, but just to be liked and make it easy, maybe I'll say चलो ठीक है कर लेते हैं. तो छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत अच्छी. मेरी मुझे तो हिला दिया था बुक. So I think that is a should read. personal trait that I want to develop, not because just that will be more make you more resilient. possibly. Well, there's no outcome that I'm trying to achieve, but I just feel that I should read it. Are you a tea person or a coffee A person? puffy person. I think we have to our office here. Just the floor above that, we have the best cafe in Surat, That's good. and I am a very regular. And I'm an Amras person now. Coming to Surat. हमने देख ही लिया. आज मैंने आपके साथ लंच में 3 अमरस गटक गया मैं. कल 4 किया था मैंने, बट mangoes are amazing यार. What is one dish in Surat you would want me to try? सर डिश तो सूरत में देखिए बहुत सारे तरह के अलग अलग वैरायटी. आई विल वांट यू टू ट्राई एग डिशेस. I don't know how many visitors, many readers might not be eating eggs and all. यहाँ पे they create very fancy dishes, proper सब्जी रोटी जैसा with eggs. जैसे पनीर की सब्जी होती है या इस टाइप से they create with eggs. And that is everyone who comes from outside, they love this, whoever eats it. Number 2, यहाँ पे एक local dish है called coco. It's a very sweet dish. It's a मतलब एकदम boiling chocolate put in ice. And it could, I don't think there's a food that's unhealthier than it, but anyone who comes from outside, they love this. So these are 2 things that you should try. बाकी local dishes जो यहाँ के गुजराती dishes है, endlessly I can put out names, and a week will be short. आज आपने उंधियू खाया. उंधियू ज़्यादातर winter में खाते. अच्छा हाँ. Winters में it's a very Rich difficult dish, dish हाँ. to make. Yeah. So these are some things. बाकी लोचो और ये सारी चीज़ें सूरत की famous है. Amazing यार. Great यार. अनुराग, पता ही नहीं चला 1-1.5 घंटा कैसे निकल गया. And loved the discussion. Absolutely. I love the way you are building Zebra Learn into a pure omni-channel business. First, you have created an amazing product. Then you have given a great digital cover and an identity. You're a friend and a foe to Amazon also. And I'm sure you'll only say कि friend. And definitely authors को आप कैसे ला रहे हैं books में. I wish to partner with you someday to write a book. And hopefully that will materialize soon. एंड आई थिंक सो इट्स घोस्ट राइटिंग पहले भी थी, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसको क्रिएटिव राइटिंग और उसमें लेके जा रहे हैं. तो ऑल द बेस्ट, अमेजिंग डिस्कशंस एंड लव टू बी इन योर सिटी. थैंक्स फॉर होस्टिंग मी हियर. Thank you so much. Thank you for having me on the podcast. I think आप जो बात कर रहे हैं on the podcast, it's a very important conversation, and it's a very under communicated and deep in the marketing room में जो बातें होती है, वो वाली बातें हम शायद open platforms पे आपके podcast में this and more than this, even other episodes आप कर रहे हैं. I think these really do help people like us, people like our readers, जहाँ पे again as I said, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जो इससे सॉल्व हो सकता है. there is a lot of value that is being transferred. मैं आपको एक थॉट से एंड करूंगा. लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग लेजी पीपल लाइक मी, वी से कि हमारे पास बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. ठीक है. तो थोड़े दिन पहले मुझे एक रिट्रीट में मैं गया था, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड मिला, सूरज, एंड आई विल शो यू हिज फोटो. ही ब्लडी रीड्स 50 to 60 बुक्स इन अ ईयर.
a book a week. a book a week and he's avid. तो मैं उसे और वो कोचिंग भी कर रहा है, उसके 2 बिजनेसेस भी हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, सब कुछ करता है। तो भाई तुझे बुक पढ़ने का टाइम कैसे निकलता है? तो उसने कहा कि मैं ना टाइम चोर हूँ। तो मैंने कहा टाइम चोर क्या होता है? तो कहता मेरी मीटिंग 10 मिनट पहले खत्म हो गई तो मैं बस वह इंस्टाग्राम निकाल के रील्स नहीं देख रहा, मैं 10 मिनट बुक पढ़ ली या 5 मिनट बुक पढ़ ली, इधर उधर करके 10-10 मिनट करके दिन में 4-5 बार पढ़ता हूँ। तो एक उससे घंटा क्या मिल होता है कि मेरे को ना चुल मची रहती है कि फिर से मैं ना कहीं से 10 मिनट निकाल लूँ, 5 मिनट निकाल लूँ, so that I progress. So many people say कि I don't have time to take out book, have a book room, then I read. But if you take out these small 5-10 minutes, you can build and be a time chore in your real I sense. think a good word. I think we can have a campaign around this. Be Be a time time chore. chore चलो। for reading. I think, but I think it's a very valid. जितना simple रखे ना उतना easy. और वो I बुक think सामने दिखती रहेगी ना, टेबल पे पड़ी है, गोदी में हाथ पड़ी है, में, इधर है, तो हाँ, हो पकड़ते जाएगा। रहेंगे। हो ही जाएगा। एंड ऑल्सो वी कॉम्प्लिकेटेड टू मच कि इसको शिफ्ट करना है, माइंडसेट शिफ्ट, ये वो, कुछ नहीं, पढ़िए पढ़ते जाओ, 5 बुक पन्ने क्रिकेट पढ़ खेलो सके। और पढ़ो। चलो ग्रेट यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैव बीइंग हियर। Okay. Thank you for watching our Dil Se Omni Talks. Every fortnight we bring an expert in the field of omni-channel, from a deep expert or from a brand, and we share their playbook of success. This entire playbook cannot be covered in one episode, so it's an evolution. We bring in companies on the product side, martech side, brand stories, and learn together. I hope you learn different things, and if you have questions, queries, please put it in the comments and share your feedback. That really helps us grow, and looking forward for you to subscribe and keep watching our new episodes. Also, we would love for you to suggest interesting guests and speakers whom you want to see on the show. So thank you very much, and looking forward to you in the next podcast.